throughout, right? And after Chakurji has given his initial session, there will be a Q&A conducted. You have two choices for Q&A. You could either put your question in the Q&A box. You will see a Q&A box that is there. So you can post your questions there and we will try to answer your questions. Or you could raise your hand and we will allow you to speak, and you can speak and ask your question as well. But throughout the webinar, I would request you to please keep yourself on mute. We will only come to you when you raise your hand and allow you to speak or ask your question, right? I would like to now invite, sorry, can we have the Naukar Mantra first? So I'll just play the recording for the Naukar Mantra. We could sing the Naukar Mantra first, please, before we get started. Right. Thank you, everyone. And now I'd like to invite Dinesh ji, who can come and introduce Chakurji to start his session. Dinesh ji, over to you. Yeah, thank you, Chetan. Thank you, Chetan. Good evening, friends, and a very warm welcome to all of you for this new session in our JBN Thought series. So it's a matter of great satisfaction that in spite of the lockdown, our earnings haven't stopped. In fact, it has only grown by leaps and bounds, and this earning is in the form of unlimited learning, which if implemented correctly would definitely result in tenfold increase in our financial earnings too. So taking forward our JBN Thought series, today we have amongst us a Maharatna of Jito Pune, a visionary, an educationalist, a great motivator, a brilliant writer, and a successful entrepreneur himself. Even though he is an epitome of versatility, his favorite pastime is to motivate people. And with exactly that in mind, I would like to invite our own Sri Chakurji Gandhi. So without wasting any more time, I would hand over the baton to Chakurji. Chakurji, the stage is all yours. Yeah, it's a pleasure to be here amongst our members, our fellow brothers and sisters, to have been invited for a webinar by Jito Pune and especially JBN. And I believe there are members from all over the country joining this. And it's a pleasure being here. Dinesh bhai, thanks for introducing, and also Chetan for organizing this, and Kishore bhai, who has invited for this webinar. I've been doing this webinar for last, I think so this must be the 15th webinar I'm doing. I've spoken on different forums, different associations, different groups. I have also given a webinar myself on different topics, and mainly it's lockdown, what next, or Bandi Mein Sandhi. Dinesh bhai, one question you would like me to speak in Hindi? Yeah, definitely, sir. I think so. सारा का सारा सेशन हिंदी में लो तो भी चलेगा. हाँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सबको ज्यादा हिंदी समझ में आती है, ऐसा मुझे हर टाइम बोला जाता है. तो मेरा टॉपिक है कि व्हाट आफ्टर लॉकडाउन या बंदी में संधि. सावधान धंधा बदल रहा है, ये मेरा हमेशा टॉपिक रहा है. ये 6-7 सालों से मैं हर जगह प्रोग्राम करता हूँ और कंटिन्यूस ऑल ओवर इंडिया में इस टॉपिक के ऊपर बात करता था. लेकिन धंधा बदल रहा है का मीनिंग ऐसा भी हो सकता है, मेरे ध्यान में भी नहीं था. मेरे क्या पूरे विश्व में ऐसे पहली बार हुआ है इतने सालों के, ऐसे इतने सालों में इसकी मिसाल भी नहीं है. और ये कोरोना कोविड-19 ये जो महामारी आई है, जिसमें हम 2 महीनों से लॉकडाउन में अपने घरों में है, पहली बार ऐसा हुआ है कि हम अंदर से डरे हुए, और वो इतने डरे हैं तो हमने उसके लिए हमारी सब प्रिकॉशंस भी ली है, और हम खुद की केयर ले रहे हैं. हम डरे हैं, अपनी फैमिली के लिए डरे हैं, पूरी सोसाइटी के लिए डरे हैं, पूरे शहर के लिए डरे हैं, पूरा स्टेट, पूरा विश्व इस समय अंदर से डरा हुआ है. और इसी वजह से हम लोग
प्रिकॉशन भी ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सैल्यूट अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से ये कंट्रोल किया है। नहीं तो पूरे विश्व के फिगर देखते हैं तो समझ में आता है कि इंडिया कितना कंट्रोल किया है। नहीं तो पूरा विश्व कह रहा था कि इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इलिटरेट है, यहाँ बहुत गरीबी है, फिर भी हमने इतना कंट्रोल में रखा है। तो सैल्यूट टू आवर प्राइम मिनिस्टर। और डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस और सब जो वर्कफोर्स काम कर रहा है दिन भर, दिन रात, जहाँ हम डरे हैं, बाहर भी नहीं जा सकते, वहाँ ये लोग अपनी जान पे खेल के सबकी, हमारी सुरक्षितता के लिए काम कर रहे हैं। तो उनके बारे में कहा जाए उतना कम है। कोरोना के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं, हर एक की स्टडी इतनी हो गई है, टीवी पे सुनते हैं, व्हाट्सएप पे सुनते हैं, वेबिनार में सुनते हैं। तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि ये मिसाल देने जैसे भी नहीं है, और इतने सालों में ऐसा कभी हुआ नहीं जो अब के बार हुआ है। और एक चीज ऐसी हुई है कि जब हमारे घरों की बिजली जाती है तो हम पहला बाहर आके देखते हैं कि सिर्फ मेरे घर की गई है या पूरे मोहल्ले की गई है। तो जब मेरे पूरे मोहल्ले की जाती है तो हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा समझते हैं कि ठीक है भाई, पूरे मोहल्ले की गए तो सब साथ में है, हम अकेले नहीं है, और आएगी तो पूरी मोहल्ले की आएगी। तो अब के बार एक ऐसी चीज हुई है कि ये कोरोना, कोविड-19, ये पूरे विश्व में है। यहाँ अमीर गरीब कोई फर्क नहीं है, कोई देश का फर्क नहीं है, कोई बिजनेसमैन का फर्क नहीं, लेबर का फर्क नहीं। ये सब साथ में एक ही साथ सब जगह आई है। तो हम लोग साथ में जुड़ के ये इसके सामने हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अपनी सुरक्षितता के लिए ध्यान दे रहे हैं। मैं ऐसा कहता हूँ कि शायद 2 महीने पहले कोई वेबिनार होते थे कि भाई लॉकडाउन में क्या होगा। एक तो अपने को अंदाज नहीं था कि लॉकडाउन बढ़ते बढ़ते लॉकडाउन 4.0 तक जाएगा। तो हम लोग शायद उस वेबिनार में कहते थे कि भाई 2 महीना हम कैसे गुजारेंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या, आदमी क्या 2 महीना घर में बैठ सकता है क्या। कहाँ कहाँ तक हम अपनी सोच में अंदाज लगाते थे भाई 2 महीनों में सबका वजन बढ़ जाएगा, शायद अपना घर का रास्ता भूल जाएंगे हम लोग। क्या क्या सोच सकते थे कि भाई 2 महीना लॉकडाउन में क्या होगा। आज ऐसा हो गया है कि लॉकडाउन के बाद में क्या क्या होगा, पूरी विश्व में क्या होगा, आदमी में क्या फर्क होगा, इसके बारे में सब लोग अपना अपना अंदाज लगा रहे हैं, और रोज नई खोज आ रही है। तो ये कोरोना के बारे में या ये महामारी के बारे में एक कहना चाहूंगा कि इसमें एक ही बात है, जैसे दिनेश भाई ने स्टार्ट की थी कि भाई होगा, सब अच्छा होगा, और इसमें भी हमें काफी अपॉर्चुनिटीज है, संधि है। तो संधि कब दिखती है, अपॉर्चुनिटी कब दिखती है? पहले तो होता है कि एक्सेप्ट करो। अभी वो एक्सेप्टेंस तो आ गया है कि भाई ये है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब जगह पूरे विश्व में फैला है, और कितना दिन चलेगा पता नहीं है। लेकिन ये पहली स्टेज होती है एक्सेप्टेंस। दूसरी स्टेप होती है कि अडेप्ट करो। अभी देखिए, इन 2 महीनों में लॉकडाउन में हमने काफी अच्छी तरह से अडेप्ट किया है। अपने घरों में बैठे, जो कभी सोचा ही नहीं था 2 महीने में, 2 महीने घर में कोई, पूरे पूरे सब लोग घर में बंद बैठे हैं। जो एक दिन या 2 घंटे अपने घर में नहीं बैठते थे, आज 2 महीना घर में बैठे हमने अडॉप्ट कर लिया, अपने घरों में काम कर रहे हैं, क्योंकि मेड्स एंड लेबर इज नॉट अलाउड। हम लोग फैमिली के साथ समय गुजार रहे हैं। हमारी जरूरतें इतनी कम हो गई है कि अभी देखिए, फॉर्मल कपड़े पहन के 2 महीने हो गए, सब लोग ट्रैक पैंट और टी शर्ट में ही बैठ रहे हैं। हमारी वॉलेट है, पर वो वॉलेट में हाथ डालने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, सिवाय ग्रोसरी या सब्जियों के लिए। घड़ी, आज मुझे तो घड़ी पहन के 2 महीना हो गया। और गाड़ियां इतनी 3-3 4-4 है, जो हम घर से बाहर आते ही पहले गाड़ी में बैठते थे, आज 3-3 4-4 गाड़ियां अपने सबके पास, लेकिन याद में रख के उसको 2-3 दिन के बाद स्टार्टर मारना पड़ता है या घुमानी पड़ती है, ताकि वो खराब ना हो जाए। तो हमने भी अडॉप्ट कर लिया। हर कोई काम बांट के कर रहा है। आज स्क्रीन टाइम जिसको बोलते हैं, भले लैपटॉप पे हो, मोबाइल पे हो, टीवी पे हो, आज स्क्रीन टाइम हर एक का 35-40 टक्के से बढ़ गया है। क्योंकि पर ये बंदी में संधि भी ऐसी है कि हम लोग इतने वेबिनार सुन रहे हैं,
मैं तो बहुत वेबिनार सुनता भी हूँ, करता भी हूँ, और इतना सीखने को मिल रहा है और बड़ी बड़ी हस्तियों को सुनने को मिल रहा है जो हमको शायद पॉसिबल नहीं था। आज ये जूम और वेबिनार में इतने लोग आ रहे हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, और सब जगह नहीं तो ये अरेंज करना दिनेश भाई हमारे लिए कोई आसान बात नहीं है, इतने लोगों को बुलाना, लॉजिस्टिक्स करना। लेकिन हम लोग अडेप्ट हो गए, अपने माइंड से अडॉप्ट हो गए, अपने शरीर से अडॉप्ट हो गए, अपने घर में ही खा रहे, बाहर का कोई सवाल ही नहीं आता है। अच्छा खाना खा रहे, घर का बनाया हुआ, फैमिली के साथ में समय गुजार रहे, जो सीखना बाकी था वो सीख रहे हैं। तो ऐसे अडॉप्ट भी हो गए। तीसरी बात होती है, पहले एक्सेप्ट होता है, फिर होता है अडॉप्ट, और थर्ड होता है इवॉल्व। तो इसके साथ में हम क्या इवॉल्व हो रहे, क्या नया कर रहे, हमारे में क्या बदलाव आ रहा है, हम किस प्रगति की ओर जा रहे हैं। मुझे किसी ने एक सेंटेंस, मैंने वेबिनार सुना, वहाँ बहुत अच्छा लगा, अ, कि ये स्टॉप बटन नहीं है, ये पॉज बटन है। फिर रिपीट करता हूँ, ये स्टॉप बटन नहीं, ये पॉज बटन है। धीरे धीरे चीजें जगह पे आएगी, बिजनेसेस भी आएंगे। तो मैंने एक सवाल पूछा था, एक वेबिनार बहुत अच्छा था, शायद जीतो ने ही किया था। तो वहाँ वीटी भारद्वाज करके वो सिकोया के एक्स एमडी, और अभी नया उन्होंने काफी बड़ा फंड खड़ा किया है। तो मैंने उनको पूछा था कि क्या 1.5-2 महीने में आदमी इतनी इंसान बदल जाएगा कि भाई वो उसके ये जरूरतें खत्म होगी, वो पूरा वर्क फ्रॉम होम करेगा, फिर वो रेस्टोरेंट में ही नहीं जाएगा, कुछ खरीदी नहीं करेगा, बाहर गांव बाहर देश में नहीं जाएगा, ट्रैवलिंग पूरा बंद हो जाएगा। तो उन्होंने हंस के जवाब दिया कि अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, हम लोग मिलना चाहते हैं। आज लॉकडाउन है, हम घरों में है, जो सही है, लेकिन खुलेगा तो ऐसा नहीं होने वाला है कि हम पूरा घर में बैठेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है कि रेस्टोरेंट में हम जाएंगे ही नहीं, थोड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पूरी सब पहले की आदतें भूल जाएंगे। अभी खास करके वर्क फ्रॉम होम जो चल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं। तो मैंने एक बहुत अच्छा, उसमें एक वेबिनार में एक बड़ा बिल्डर बॉम्बे के बोल रहे थे कि भैया आज सब लोग कंपनियां बोलने लगी 75% हमारा स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा। परसों ट्विटर के ओनर ने बोला कि हम परमानेंटली ऑप्शन देंगे कि इफ यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम। पर एंड में इंसान ये सोशल एनिमल है, वो आएगा, उसको मिलना पड़ेगा। आगे चालू होगा तो हम लोग रूबरू मिलेंगे, एक दूसरे से बातें भी करेंगे। और ये वर्क फ्रॉम होम, उन्होंने सही सवाल खड़ा किया था कि ये ऑप्शन तो पहले से था, ट्रैफिक का प्रॉब्लम पहले से था। 1.5 घंटा आपका स्टाफ गाड़ियां चला के आता है, इतना रेंट आप भर रहे, एक एक उनका प्रेमाइसिस टीसीएस का 20-20 हजार लोगों का है। तो तभी क्यों नहीं आपको लगा कि वर्क फ्रॉम होम होगा। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है, यस वर्क फ्रॉम होम कई जगह चालू होगा, और भारद्वाज जी ने भी कहा कि जो अच्छी बातें हम सीखे वो शायद हमारे साथ रहेगी। पर सब पूरा बदल जाएगा, और 1.5-2 महीने में आदमी काफी चीजें भूल जाएगा, काफी चीजें करेगा ही नहीं। ये अनुमान लगाने के लिए कोई डेटा नहीं है, कोई स्टडी कर नहीं सकते, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। हम जो महसूस कर रहे हैं पहली बार कर रहे हैं। ये आने वाले कितने जनरेशन के लिए मिसाल होगी, ये डेफिनेटली सीखने की बात है। तो ये एक पॉज बटन है, ये स्टॉप बटन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि मुझे एक सेंटेंस बहुत अच्छा लगा, व्हाट्सएप पे ये आया था कि वो उन्होंने लिखा था कि विंस्टन चर्चिल ने कहा है, पता नहीं, पर नो क्राइसिस शुड गो वेस्ट, नो क्राइसिस शुड गो वेस्ट। मतलब कोई क्राइसिस में वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और जो मैं पॉजिटिव स्पीकर सुन रहा हूँ, जो अच्छे स्पीकर सुन रहा हूँ, बोलते कि इसी में ही संधि है। और जो जो देशों के ऊपर बहुत तकलीफ हुई है, वॉर हुए हैं, जो भी हुआ है, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा है, वो देश बाद में उभर के आए हैं। जो व्यापारी अब तकलीफ से गए, हम लोग डिमोनिटाइजेशन, जीएसटी, वैट, इन सारी चीजों में बहुत तकलीफ से गुजरे, लेकिन हम वापस स्ट्राइक बैक कर चुके हैं और आए हैं। तो ये तकलीफ के बाद में इंसान उभर के आता है, नई सोच के साथ में आता है। अब की बार ये जो कोरोना में हुआ है, जैसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे चीजें हुए कि जो ऐसे मिसाल ही नहीं है। जैसे ऑयल का हुआ, $22-23 से -$38, मतलब माल उठाने के पैसे, ये कभी सुना ही नहीं था, माइनस प्राइस मालूम ही नहीं था। फ्यूचर में मतलब फ्यूचर एक्सचेंज के ऊपर ये
बड़ी सोच चली कि इसका माइनस प्राइसिंग कैसा करना है। तो ये ऑयल का माइनस प्राइसिंग ये कभी सुना ही नहीं था। स्टॉक मार्केट 42,000 से 26,000 आया, वापस अभी 31,000 तक आया है, पर इतनी गिरावट कभी हुई नहीं थी, या पास्ट में एक आध दो बार हुई थी, लेकिन इतनी नहीं शायद। ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का हुआ कि जो उन्होंने 6 प्रोडक्ट बंद किए जो उनके डेट फंड के थे। ये भी मिसाल नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट सामने आया और उन्होंने लिक्विडिटी खड़ी करके दी। तो ऐसी-ऐसी बातें इकोनॉमी में हो रही कि कभी सोचे भी नहीं थे। इसी समय एक बहुत अहम बात हुई है जो हमको ध्यान में रखना है कि फेसबुक ने जियो में 9.5% या 10% शेयर लिया, कुछ 47,000 करोड़ में। ये भी ऐसे टाइम में ऐसे भी कुछ व्यवहार हुए, ऐसी भी कुछ बातें हुई, और बाद में 1.5%, 2%, 3% स्टेक सबने जियो में लिया है, और उसका क्या परिणाम है मैं डिस्कस करूंगा। तो चॉइस अपने लिए एक ही है। किसी का एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, सवाल ये है कि आप प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहते हैं या सॉल्यूशन पे। दो ही चॉइस है अपने पास। प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो पूरा दिन, पूरे घंटे, पूरे मिनट में इतनी केसेस बढ़ी, इतनी बढ़ी क्या तो बढ़ी। पूरे दिन में कि ये विश्व में क्या हो रहा है, इकोनॉमी क्या हो रही है, अमेरिका की इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी, माइनस जीडीपी इतना होगा, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 5% से 2.5 का अनुमान किया, 2.5 से 2 का किया, 2 से अभी बोलते -0.5% तक डिग्रोथ आएगी जीडीपी की। आएगी क्या तो शायद आ सकते हैं, इनकी स्टडीज है। लेकिन सवाल ये है कि हम दिन भर यही सोचते बैठे, यही सुनते बैठे। तो कोरोना के बारे में भी ऐसा है कि हम दिन भर जब देखते हैं तो कहीं न कहीं मन में ऐसा आने लगता है कि ये सब मुझे होने वाला है। हम पहले खाँसते थे तो ध्यान भी नहीं जाता था, अभी कोई एक 500 मीटर पे भी खाँसता है तो सब ऐसी तरह से देखते हैं, या हमको कुछ थोड़े गले में हुआ तो लगता है, अरे ये अपने को हो रहा है, या अपने को होगा क्या? तो ये सॉल्यूशन नहीं है। क्या हम प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहते हैं या सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहते हैं? ये देखने की बात है, सुनने की बात है, लेकिन कितना? बिज़नेस के बारे में भी यही कहूँगा। लोग कहते हैं कि ये इकोनॉमी उतनी हो गई, बिज़नेस 40% डिग्रोथ होगा, 50% होगा, इसमें 2 साल होंगे, 2 साल जाएँगे, या ये इंडस्ट्री फेल होगी। अभी एक मिसाल देता हूँ कि इतने हम बोल रहे हैं ऐसा होगा, वैसा होगा। एक लिकर की दुकानें क्या खुल गई, कितनी लाइन लग गई, और उसके पहले लोग बोलते थे कि शायद लोगों की ये आदतें छूट जाएगी, और वो जब लाइन देखने लगा तो मुझे भी लगने लगा कि आदमी कितने सेकंड में, कितने मिनट में वापस अपने विचारों पे, अपनी आदतों पे आ जाता है। और आज देखिए लेबर घर जाना चाहता है, हर हालत में जाना चाहता है, और इतनी उसकी घर जाने की ये है आशा उसको कि वो कैसे भी, जैसे चलते निकले, साइकिल पे निकले, जैसे निकले। तो ये सब बातें भी देखना ठीक है, लेकिन कितना देखोगे? तो मेरा आज का कहना ये है आप लोगों को, सबको, और मैं आप में से हूँ, आप जैसा ही बिजनेसमैन हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, डीलर हूँ, रिटेलर हूँ, और अभी ज़्यादा करके बिजनेस मेंटोरिंग करता हूँ, बिजनेस कोचिंग करता हूँ, कंसल्टिंग करता हूँ ग्रोथ के लिए। इसी दरमियान ऐसा हो रहा है कि मैं जिन पॉजिटिव लोगों से बात कर रहा हूँ, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा प्लान तैयार है कि जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा, मैं अभी उसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, और मुझे बहुत डिमांड लग रही है मेरे प्रोडक्ट को, तो मैं मेरा प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ाने वाला हूँ। उसका प्लान तैयार है। एक कंपनी मुझे मिली कि जिनको आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट के साथ में काम है। तो उन्होंने ये सोचा कि अभी लोग लिंक्डइन पे इस पे मिलते हैं, तो उन्होंने अच्छे से काफ़ी लोगों से कॉन्टैक्ट करके ये समय वापरा, और उनको अभी 40 आर्किटेक्ट की अपॉइंटमेंट मिली है जो लॉकडाउन के बाद में उनको बुलाया है मिलने को। और एक है कि उन्होंने कहा कि मेरा सब ठीक है, और मैं तो देख रहा हूँ कि कब लॉकडाउन खुले और मैं मेरा काम चालू करूँ। तो पॉजिटिव लोगों की सोच ऐसी भी है, और वो इस नजरिए से देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि हमको क्या सोचना है, और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब खेल इधर है। तकलीफ होने वाली है क्या? होने वाली है, शायद होने वाली है। लॉकडाउन कब खुलेगा, मेरी दुकान कब खुलेगी, मेरी फैक्ट्री कब खुलेगी? तो पर ये मानना बिल्कुल गलत है कि मुझे ये सब तकलीफें आएगी। आप मान के चलोगे कि मेरा बिजनेस 50% ग्रोथ डीग्रो होने वाला है, तो वो शायद 60% होगा। पर आप मान के चलेंगे कि कोई बात नहीं, ये तकलीफ आई है, लॉकडाउन खुलेगा, मैं मेरे बिजनेस में जाऊंगा,
धीरे धीरे चीजें पॉज के जैसे 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जगह पे आएगी। और मुझे ये मंजूर नहीं है कि मेरा बिजनेस डीग्रोथ होगा। एक बार ये सोच लाएंगे तो देखिए कितना फर्क पड़ता है। और ये आप मान के चलोगे कि मेरा बिजनेस 40%, किसने कहा है कि यूएस का होता है मतलब आपका बिजनेस होने वाला है? किसने कहा ये इंडस्ट्री ये जाने वाली है तो मेरा होने वाला है? ऐसा कोई जरूरी नहीं। वो अपनी सोच के ऊपर है। ऐसी इंडस्ट्रीज काफी है जो लॉकडाउन के बाद में बहुत उभर के आने वाली है। तो मेरी ये सोच में लाऊंगा, ये पॉजिटिव सोच लाऊंगा, सोल्यूशन क्या निकलता है वो देखूंगा। इस नजरिए से हमने यदि विचार चालू किए तो काफी फर्क पड़ेगा, और जरूर पड़ेगा। तो मेरा पहला तो चैलेंज ये है लोगों को, सब बिजनेसमैन को, मैं काफी एसोसिएशन में भी बात करता हूँ कि दुनिया का कितना भी हो, 40%, 50%, मेरा बिजनेस ये साल भले 2 महीना जाए या 3 महीना जाए, मैं गए साल इतना तो पक्का करूंगा, मैं डिग्रोथ नहीं आने दूंगा। और ये कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा भी। पर पहली ये सोच आपको एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कि मेरी डीग्रोथ पक्की नहीं आएगी, या ज्यादा करके उससे भी मैं 15-20% ज्यादा बिजनेस करूंगा। ये हम सोच क्या ला सकते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। मेरी एक मिसाल है कि जैसे घड़ी बंद हो जाती है, आपकी सेल सेल गया या बैटरी गई करके, तो हम उसमें सेल डालते हैं। तो क्या हम उसी समय के साथ घड़ी चालू करते हैं या समय बदलते हैं? हम लोग सेल डालने के बाद में अभी का जो समय है वो उसमें रीसेट करते हैं। तो वो रीसेट हमको करना पड़ेगा, नई सोच लानी पड़ेगी। हम वही बिजनेस उसी कस्टमर के साथ में उसी जगह से और वही माइंडसेट से वही स्टाइल से करूं, और फिर सब वैसे ही होगा, ये होने वाला नहीं है। पहले तो हमको नई सोच लानी पड़ेगी। हम कहाँ कहाँ क्या नया कर सकते हैं, वही बिजनेस नई स्टाइल में क्या कर सकते हैं, नए कस्टमर कौन से ला सकते हैं, कौन से नए मार्केट में जा सकते हैं, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखना जरूरी है। मैं सबको एक गुजारिश करना चाहूंगा कि हम लोगों को दिन में 70-80 हजार थॉट आते हैं, विचार आते हैं। नींद में कितने आते हैं मुझे पता नहीं है, पर ऐसे इसकी स्टडी है। पर जब हमको संधि मिली है, हम लोग बिजनेस में 2 भाई है, फादर और सन है, या हस्बैंड वाइफ बिजनेस में है, तो हम लोग आधा घंटा निकाले, 1 घंटा निकाले और बिजनेस के बारे में सोचे। और मेरी गुजारिश ये है कि सोचने में हमारे थॉट में एक कोई लिंक नहीं रहती है। मन इतना वेवरी है कि अभी एक सोचेगा दूसरा सोचेगा। तो मैंने ये किया है कि मैं रोज आधा घंटा या 1 घंटा अपने बिजनेस के बारे में सोचता हूँ और अपनी डायरी में लिखता हूँ। डायरी में जब लिखोगे, आजकल लिखने का किसी को आदत नहीं है लिखने की, पर अपने नोट्स में, मोबाइल पे नोट्स में या लैपटॉप में कहीं पे भी आप उसमें कीन कर सकते हैं। तो जब आप लिखते हैं तो आपके विचारों में एक सूत्र आता है, एक कोऑर्डिनेशन आता है, एक लॉजिक आता है। और ये डायरी आपकी रेफरेंस की रहेगी, हमेशा आपके साथ रहेगी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या सोचा था। तो ये करना बहुत जरूरी है। अभी चैलेंजेस पहले तो ऐसे है कि अपने को आने वाले हैं। अभी जो कई लोगों की फैक्ट्रियां खुलने लगी है, तो उनको पहला सवाल ये है कि डिस्पैचेस नहीं हो रहे। थोड़ा टाइम लगेगा। इमीडिएट देखो, एकदम सब बंद हुआ तो एकदम सब चालू भी नहीं हो सकता, उसको थोड़ा थोड़ा चालू करना पड़ेगा। तो मेरा पहला ये है कि हमको एक कंसर्न है, और जो अपने डायरी में लिखना चाहिए, जो हम शायद बिजनेसमैन नहीं करते, इंडस्ट्री जरूर करते हैं, प्रोफेशनल कंपनियां काम ऐसे करती है, तो हम लोग कभी कैश फ्लो नहीं निकालते। और जानकार तो ये कहते हैं कि प्रॉफिट और बैलेंस शीट ये बाद में देखते हैं, वो कैश फ्लो पहला देखते हैं। तो आने वाले 6 महीने में, कम से कम 6 महीने, हो सकता है तो साल का सोचे, 6 महीने में मुझे क्या क्या खर्चे हैं जो मुझे करने पड़ेंगे, और 6 महीने में मेरी मेरी आय उत्पन्न या रेवेन्यू साइड मुझे कहाँ कहाँ से कितना आने वाला है। अनुमान लगाइए, हर बिजनेस को अंदाज रहता है, काफी फिगर्स यहाँ रहती है। तो हमको खर्चे 6 महीने में क्या क्या है, या 1 साल में क्या क्या है, और 1 साल में हमको रेवेन्यू साइड में क्या क्या आने वाला है। जब आप ये लिखोगे तो दो चीजें हो सकती है, या तो आप सुकून से सो सकते हो कि मुझे कोई तकलीफ आने वाली नहीं है, मेरा सब प्लानिंग ओके है, तो फिर डर भी नहीं लगता है।
नहीं तो खाते सोचते हैं एकदम, किसका सुनते हैं तो हमको भी लगता है अरे फिर कैसा करेंगे, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है या हमने सिस्टमेटिकली सोचा नहीं है। दूसरा हो सकता है कि आपके ध्यान में आएगा कि मुझे 2 महीना तो चल जाएगा, तीसरे महीने में तकलीफ आने वाली है, तो मैं आज से काम में लगूंगा, मैं 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद मैं पैसा कहाँ से लाने वाला हूँ। तो एक आपको दिशा मिलेगी। अभी आपको खर्चे जो है 6 महीने में मेनली जो है सबको, पहली तो कंसर्न है सैलरी की। तो सैलरी चलो मार्च ही कर ली, गवर्नमेंट बोल रहा है सैलरी देनी ही पड़ेगी, जबकि गवर्नमेंट ने काफी डिपार्टमेंट में अभी तक सैलरी पूरी दी नहीं है। फिर भी वो मेरा विषय नहीं है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट सब बिजनेसमैन को है कि आपके लोग जितने कम सैलरी वाले हैं, समझो मिनिमम वेजेस से कम है, 10,000 15,000 तक है, देखिए हो सकता है तो उनकी सैलरी करिए। अभी मार्च की तो कर ली, अप्रैल की भी शायद लोगों ने कर ली, लेकिन कहाँ से करेंगे, पैसा आएगा कहाँ से? और आज हर पैसे की तरफ देखना पड़ेगा। तो मैं तो सबसे बात कर रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट लेवल है या मिनिमम वेजेस के आगे के लोग हैं जिनका एक भी काम हुआ नहीं है 1.5 महीने से 2 महीने से, तो उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनसे बात करिए कि भाई आपके भी पैसे बचे, और कंपनी में जब पैसे ही नहीं आ रहे तो हम सैलरी, कंपनी अपनी है, सबकी है। कंपनी चलेगी तो आप और हम जीने वाले हैं। यदि कंपनी चलने वाली ही नहीं है और आमदनी ही नहीं है तो कहाँ से सैलरी करेंगे? और ऐसे बात करके हो सकता है अप्रैल की आप 50% दो, 40% दो, 60% दो, वो आप टीम के साथ में बात करिए, लेकिन वो समझने के मूड में है और जरूर बात करनी चाहिए, ऐसी मेरी राय है। दूसरा, अभी इंडस्ट्रीज में एक ट्रेंड पहले से आया है और अभी आगे हम कर सकते हैं क्या, देखिए कि जो ज्यादा सैलरी वाले हैं उनको 70% फिक्स्ड और 30% वेरिएबल सैलरी का मॉडल डिस्कस करिए। मुझे बहुत सवाल बाद में फोन आते हैं कि आप बोल रहे हैं वो कैसा करना है 70-30। तो ऐसा है कि 70% फिक्स, 30%, 100 रुपए उसकी सैलरी है तो 70 रुपए उसको मिलेंगे, 30 रुपए डिपेंडिंग ऑन द सेल्स ऑफ द कंपनी। तो सेल्स में समझो कभी उसको 100 के 110 मिलेंगे, 100 के 90 भी मिल सकते हैं। ही इज लाइक अ पार्टनर। सेल आया तो पैसा मिलेगा, नहीं आया तो नहीं मिलेगा। तो ये मॉडल सब जगह अभी काफी आने वाला है, हो सकता है तो आप भी बात करिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप सेल्स में हो, आप पैसा, कंपनी में पैसा नहीं आएगा तो आपको इतना मिलना ही चाहिए, ये बहुत कम लेवल के काम करने की सोच है। तो ये भी टीम के साथ में आपको डिस्कस करना पड़ेगा और फिर निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन ये डिस्कस करने का टाइम आया है। और जिन कंपनियों का ये मॉडल है 1.5-2 महीने से उन्होंने वो 30% तो वाइप ऑफ कर दिया, 70 में भी कम ज्यादा कर रहे हैं। तो ये टीम का जो खर्चा है, लोगों का खर्चा है, तो ये अपने को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और ये आपको कितना खर्चा 6 महीने में आने वाला है। दूसरी बात, काफी लोगों के बिजनेसेस रेंट पे जगह ली हुई है। मेरी 2 फैक्ट्रियाँ रेंट पे ली है, 3 जगह मैंने रेंट पे दी है। तो रेंट का एक खर्चा है जो अभी के समय में आप लैंड ओनर या ओनर से बात करने का समय आया है, और आप उनसे बात कर सकते हैं कि भाई लॉकडाउन है, मेरा धंधा ही नहीं चला, मैं खोल ही नहीं पाया, तो हम क्या कर सकते हैं। तो एक दूसरे को संभालने का टाइम आया है। उनसे बात करके लॉकडाउन पीरियड का 50-50 हो सकता है क्या, इसके ऊपर काफी पहल चल रही है कि एक्ट ऑफ गॉड के नीचे आता है क्या, फोर्स मेजर के नीचे आता है। मैं तो कहूंगा कहाँ अपने को कोर्ट में जाना है, तो आप सामने से फोन करते। मैंने लैंड ओनर को फोन किया तो बोले आपका कम से कम फोन आया, मुझे अच्छा लगा, बोलिए क्या करना है। मैं बोला ऐसा ऐसा रीजनेबिलिटी है, हम लोग लॉकडाउन हम आधा बेयर करेंगे, आप आधा बेयर करो। वो मान गए। तो ये समय है जब एक दूसरे का मानने की मानसिकता है। कल लॉकडाउन खुल जाएगा, बिजनेसेस चालू होंगे तो इसके ऊपर डिस्प्यूट होगा। तो जहां रेंट देना है आप जरूर बात करिए। एक ट्रेंड है 2008 के मंदी के बाद में सब रेंट नेगोशिएट हुए थे, रीनेगोशिएट। कंपनियों ने बोल दिया ये रेंट हमको परवड़ता नहीं है, आप कम करो या हम छोड़ के जाएंगे। तो आपको जहां रेंट पे जगह दी है, ये पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला आपको बोलेगा रेंट कम करो। वो हमने भी समझ के करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और एक ट्रेंड आने जा रहा है कि मॉल वाले ने ऑलरेडी बात करने चालू की है कि इसके आगे रेंट हम परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू पे देंगे। धंधा हुआ तो इतना रेंट, नहीं हुआ तो हम कम देंगे। तो हर कोई चीज अभी रेवेन्यू से
जोड़ी जाने की पॉसिबिलिटी पक्की है। तो जिनको रेंट देना है वो भी अपने ओनर से बात करे, रोना चालू करे। जिनको रेंट लेना है वो भी अपने क्लाइंट के साथ में रोना चालू करे। तो मेरा एक ही बात है, जहाँ पैसा जाने वाला है वहां पे भी रोना चालू करो, जहाँ पैसा आने वाला है वो भी रोने की कोशिश करके वो पैसा आप ले सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सैलरी हो गया, रेंट हो गया, और ये एक समय है जो बद्दी में संधि मैं कहता हूँ, और इंडस्ट्रीज में इसको री इंजीनियरिंग बोलते हैं, वो करने का समय आया है। मैं सालों साल एक धंधा एक स्टाइल में कर रहा हूँ, मैंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में थे, हमको ऐसा झटका लगा ही नहीं, पहली बार जोर का झटका लगा है। तो अभी सोचने का टाइम आया है कि हम कहाँ कहाँ खर्चे कम कर सकते हैं, हमारी कॉस्ट रिडक्शन कहाँ कर सकते हैं। और एक बात ईएमआई की है, काफी लोगों को ईएमआई है। तो ईएमआई का मैं जहां तक समझता हूँ, उन्होंने वेवर या मोरेटोरियम, उसके ऊपर ब्याज जब तक आपका टेन्योर चलेगा ब्याज लगने वाला है। तो ये बगैर काम का, यदि हो सकता है आपके पास लिक्विडिटी है तो ईएमआई दे दीजिए। अभी तक कोई भी चीज बगैर ब्याज की नहीं आई है, टोटल फ्री एक भी स्कीम नहीं आई। सबके ऊपर ब्याज है। आपको कर्जे मिलेंगे, कम ब्याज से मिलेंगे ऐसा बोलते हैं, लेकिन ब्याज है। तो ईएमआई का मॉरेटोरियम भी हो सकता है, तो आप ईएमआई का पैसा जोड़ लीजिए और दे दीजिए। क्रेडिट कार्ड जिन्होंने वापरा है, क्रेडिट कार्ड का पैसा समय पे दे दो, नहीं तो इनका ब्याज बहुत भारी रहता है। और एक संधि आई है, हमको अपॉर्चुनिटी आई है, वो ऐसी है कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, जब हम हर एक कॉस्ट सेंटर देखेंगे बिजनेस में, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, अभी जो गवर्नमेंट जो सहूलियत दे रही है उसमें सब जगह बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ने वाली है। ऑलरेडी 7 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बढ़ाई है गवर्नमेंट। तो मैं पहला देखूं, यदि कोई बैंक का लिमिट वापर रहा है, वर्किंग कैपिटल वापर रहा है, टर्म लोन वापर रहा है, घर का ईएमआई है, तो लोग बोलते हैं कि बैंक के साथ में रिलेशन है। तो मैं तो बोलता हूँ बैंक और मोबाइल कंपनी, देखिए, हम जिसको रिलेशन बोलते हैं, वो कोई भी स्कीम जो लाते हैं वो नए कस्टमर के लिए लाते हैं। आप देखिए, ब्याज कम का एडवर्टाइजमेंट आया, उसको फोन करे, वो बोलते हैं सर एग्जिस्टिंग लोन होल्डर के लिए नहीं है, वो हम नए अकाउंट के लिए कर रहे हैं। मोबाइल कंपनी में कोई स्कीम आता है, आप जाओ, बोलेंगे पुरानों के लिए नहीं है, वो नए लोगों के लिए है। तो कहाँ रिलेशन की बात आती है? तो मेरा कहना ये, हम हर हमको कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हमको नीचे लाना पड़ेगा, और ये एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। हर कोई 2 या 3 बैंकों से बात कर लो, बैंकों को भी अच्छे कस्टमर चाहिए, और कम से कम एग्जिस्टिंग लोन से आधा टक्का, 1%, और जहाँ ज्यादा रेट भर रहे वहां तो 2-2% कम होने का चांस है। आप इसके पीछे लगो, क्यों नहीं लगना चाहिए? एक अपॉर्चुनिटी आई है, कम से कम हो, हम लोग उतना तो कर ही सकते हैं। तो हम कॉस्ट ऑफ फाइनेंस नीचे लाएंगे, और काफी कॉस्ट है हमारे। मैंने अभी मिसाल, किसी ने सवाल पूछा था, और मेरे बाद में मेरे पास कंसल्टिंग के लिए भी आए। तो एक रेंट पे जगह ली है, रेंट इतना भारी है, तो मैंने उनको पूछा वहां कस्टमर आता है क्या? बोले नहीं। तो मैं बोले फिर इतना रेंट क्यों दे रहे? बोले नहीं, सालों से हमारा गुडविल है। मैं बोले जब कस्टमर ही वो जगह पे नहीं आता है तो गुडविल का सवाल कहाँ आता है? 1 लाख रुपए की जगह की जरूरत है क्या? तो उनको 35,000 में उससे दुगुना जगह बड़ी मिलने को पॉसिबिलिटी। तो हम लोग हर एक चीज में क्यों नहीं ध्यान दें? अभी एक चैलेंज ऐसा है, इवन लॉजिस्टिक्स बोलता हूँ मैं, हम लोग जिस भाव में, जिस रेट परसेंटेज में लॉजिस्टिक्स हैंडल कर रहे हैं ना, अपना माल जाता है, अपने को लगता है हम एफिशिएंट है। कभी ध्यान दे के देखो कि हम जिस भाव में कर रहे हैं ना, ये प्रोफेशनल लॉजिस्टिक कंपनी उससे आधे रेट में वो काम करते हैं। आप कभी दे के देखो, वो कम जगह में ज्यादा माल रखते हैं, फास्ट डिलीवरी करते हैं, देखते हैं कि एक माल 4 बार खाली लोड अनलोड ना हो। हमने कभी शायद देखा नहीं, मैं शायद बोल रहा हूँ, शायद आप करते भी होंगे, लेकिन आराम से काम चल रहा है, क्योंकि ये देखने का कभी टाइम ही नहीं आया, इसमें ध्यान देने का कभी टाइम नहीं। अभी टाइम आया है, तो उसका आप कॉस्ट सेंटर कहाँ कहाँ कम कर सकते हो, और क्यों करना चाहिए मैं बोलता हूँ। दिनेश भाई एक मेरे कॉम्पिटिटर है, और मैं एक चकोर गांधी हूँ। दिनेश भाई ने होशियारी से वापस धंधा चालू किया, सब कॉस्ट सेंटर से कॉस्ट नीचे लाए, और उन्होंने मेरे से कम रेट में माल देना चालू किया। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं बोलूंगा दिनेश भाई को क्या है, कम में माल बेच रहे।
पर उन्होंने उनका कॉस्टिंग कम लाया है। आपका कॉम्पिटिटर आपको खा जाएगा। यदि आपने नहीं किया, आप राह देखोगे, तो आपको ये कॉस्ट सेंटर पे काम करके इसका बेनिफिट कस्टमर को देना पड़ेगा, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ये कॉस्ट सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ। एक पॉसिबिलिटी है कि काफी लोगों को वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज आएगा, क्योंकि हमारा रेवेन्यू साइड इतना समझो नहीं आता है, जल्दी नहीं आता। तो ये अपना एक व्यापारियों का एक प्रॉब्लम है या एक इश्यू है कि हम लोगों का वर्किंग कैपिटल स्टॉक में और उधारी में अटका है। आप ध्यान देना चालू करो। स्टॉक काफी बार डिबेट करते हैं मेरे से। मैंने बोला आपने देखा है क्या, एजिंग निकाला है क्या, कि भाई मेरे पास कितने दिन से कौन सा स्टॉक पड़ा है। मैं तो बोलता हूँ रोज सुबह कंप्यूटर ऑन करते ही आपके सामने लिस्ट आनी चाहिए कि ये दिन इतने स्टॉक, ये स्टॉक इतने दिनों का है। मैं एक ऑटोमोबाइल का हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे पता नहीं या कोई ऑटोमोबाइल डीलर है क्या। तो पेड अप स्टॉक एक कार का, मैं नाम नहीं लूंगा, 21 दिन में यदि गाड़ी नहीं बिकती है पेड अप, तो 22वें दिन उसका मार्जिन जाता है, मतलब वो कैपिटल खाता है। और व्यापारियों को बहुत खुशी होती है कहने को देखो मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है। पर ये एफिशिएंसी हमको लानी पड़ेगी। और प्रोफेशनल कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जहां एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 2-2 हजार पार्ट लगते हैं, ऐसी इंडस्ट्री 6 दिन के इन्वेंट्री पे इंडस्ट्री चलती है। तो हमारे पास क्या क्या स्टॉक पड़ा है, कब से पड़ा है, मैं आने वाले 3 महीने में ये स्टॉक से कितना पैसा बाहर निकाल सकता हूँ, ये अपना पहला काम रहेगा और ये करना पड़ेगा। एक कहना चाहूंगा कि अभी देखिए जैसा लॉकडाउन खुलेगा, आप ऑनलाइन वाले, रिटेल मॉल वाले ऐसे ऑफर देंगे कि आपके ध्यान में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टॉक घर में नहीं रखते। वो स्टॉक फास्ट मूव करते हैं और वो इमोशनली अटैच नहीं होते। हम व्यापारी इमोशनली अटैच्ड होते हैं, ये मैंने लाया है, इसको गिराएगा, आएगा आएगा तब आएगा, इतने दिन हुए मतलब इसको अभी मेरे को निकालना पड़ेगा। और दुनिया कैसे सोचती है, फ्यूचर डिस्काउंटेड कैश प्राइस के बारे में सोचती है कि भाई मेरी ये चीज 1 साल के बाद में 100 रुपए में बिकेगी। इसका मीनिंग ये है कि मैं आज 70 रुपया भी उसका मेरे को आज मिले आज, तो उसके 1 साल में 100 रुपए होते अपने धंधे में। इतनी बार रोटेट होता है। पर ये हम शायद भूल जाते हैं और स्टॉक पकड़ के बैठते हैं। उधारी के बारे में तो मैं जितनी बात करूँ उतनी कम है। 30 दिन, 45 डेज, 60 डेज मैं समझ सकता हूँ बिजनेस उधारी के बारे में नहीं होता है, लेकिन 90 दिन, 120 दिन, और देखिए आज के समय में आपके उधारी आपके पैसे काम में नहीं आएंगे तो कब आए। तो मैं तो कहता हूँ आज से भी अच्छे कस्टमर को फोन करो, 10 कस्टमर में से 2 सुनेंगे, 25-25% पैसा देंगे, लेकिन उधारी का पैसा आपको वर्किंग कैपिटल देने वाला है। आप समय पे उसकी वसूली बहुत अच्छी तरह से रिलेशन मेंटेन करते हुए, रिक्वेस्ट करा करा के, जैसे मैंने बोला कि आप रोना चालू करो, तो वो पैसा आप उधारी और स्टॉक से आपको वर्किंग कैपिटल खुला होना ही चाहिए। और एक बात मैं कहता हूँ कि इसके बाद में उधारी का कस्टमर शायद मार्केट में पहला बाहर आएगा। और हम लोग व्यापारियों को खुशी होती है कि बिजनेसमैन को कि चलो भाई आज कस्टमर आया। तो पहला सोचना चाहिए कि इतने साल नहीं आया हुआ कस्टमर आज किशोर भाई का कस्टमर मेरे पास क्यों आया, दिनेश भाई का कस्टमर मेरे पास क्यों आया। क्योंकि कई कस्टमर अभी देखेंगे कि चलो भाई माल इनसे ले लो, रोकड़ा करो, अपने को वर्किंग कैपिटल मिलेगा। हो सकता है ऐसे कस्टमर भी आ सकते हैं। तो हमको ये हर एक कॉस्ट सेंटर और ये वर्किंग कैपिटल यहाँ से खड़ा करना पड़ेगा। ये हमारी आने वाले दिनों की सोच होनी चाहिए, इसका एक्शन प्लान होना चाहिए, इसका वर्किंग प्लान होना चाहिए। और अपने को कीमत समझेगी आज अपने पैसे की, उधारी की क्या कीमत है और अपने घर में हुए पैसे की क्या कीमत है। और काफी बार ऐसे जब क्राइसिस आया तो जानकार लोगों ने एक ही बात कहा कि ऐसे समय पे गार्ड योर कैपिटल, मैं गलत जगह नहीं फंसू। मेरा कैपिटल मेरे पास है तो 100 धंधे है, 100 अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन मैं पैसा डाल के फंसू, फिर बाद में कोई अपॉर्चुनिटी सिर्फ पैसा मांगने के सिवाय रहती नहीं है। तो ये कॉस्ट सेंटर के हिसाब से और ये होता है। फिर फिर बिजनेस आएगा कहाँ से, मैं रेवेन्यू साइड की बात करूंगा। मुझे एक मैसेज आया।
cancel the spotlight video. Yes, Chetan. Chetan, Yeah, are you just here? checking on it, sir. Yeah, yeah. Yeah. Is everything fine? आवाज आ रही है ठीक से? Yeah, I Hello. think everything is working fine. Yes, sir. Yes. Okay. एक मैसेज आया था लिटिल लाउडर प्लीज, इसके लिए मैंने पूछा. फाइन. नहीं No, आवाज no, we are आवाज here, तो able to बराबर hear you fine, sir. ओके. सो बराबर आ रही है बिजनेस आवाज. बिजनेस कहाँ से आएगा? प्लानिंग करो. अभी नई सोच के साथ में उतरोगे तो जरूर आएगा. मेरे ये कस्टमर, ये मार्केट ठंडा चलने वाला है तो मैं ये मार्केट में जा सकता हूँ क्या? मैं मार्केट को रीच कर सकता हूँ क्या? मैं नए कस्टमर कैसे जोड़ सकता हूँ? मैं पुराने कस्टमर जो मेरे लिए अच्छे नहीं है उनको आज कैसा बाहर, मतलब उनसे धंधा ना करते हुए नए कस्टमर, नए प्रोडक्ट, नए मार्केट क्या क्या कर सकता हूँ, ये सोचने का टाइम है और करना पड़ेगा. मैं वही सोच के साथ में दुकान खोलूंगा, बिजनेस खोलूंगा तो शायद ग्रोथ नहीं आएगी. हमको समय मिला है सोचने का. आप जब लिखना चालू करोगे कि पहले महीने में भाई 20% ही धंधा होगा, दूसरे महीने में 40% होगा, तो ये 20% में कैसे बढ़ाऊं, कहाँ रीच करूं? अभी आप एक जहाँ यहाँ रिटेलर होलसेलर होंगे तो आपको एक मिसाल देना चाहूंगा कि फेसबुक और जियो में स्टेक लिया है और मैं सब किसी भी को पूछूंगा कि आप मेरे 100 कस्टमर का डेटा मुझे दीजिए. उसकी उम्र क्या है, उसके पॉकेट साइज क्या है, वो कितनी बार आपके पास आया है, कितने दिनों से नहीं आया है, वो महंगी चीज लेता है, सस्ती लेता है, शाम को कितने बजे आता है, ये डेटा हमारे पास नहीं है. जबकि हर सॉफ्टवेयर में सीआरएम होता है. जैसे हमारे अजीत भाई थाड़ानी देते रिटेलर के, जैसे स्टॉक का भी वो देते हैं कि रोज एजिंग वाइज स्टॉक आता है. और देखिए, देखते देखते फेसबुक और जियो को अपना फेसबुक के माध्यम से या और माध्यम से पूरा डेटा उनके पास रहने वाला है कि चक्कर गांधी कितने बजे जाते, क्या खाते, कौन से रेस्टोरेंट में जाते, क्या सर्च करते, कितना खर्चा करते, ये डेटा इनके पास सब जाएगा. पर एक उसमें अच्छी बात है कि वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं और उनका ध्यान एमएसएमई पे, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज, और खास करके रिटेलर के ऊपर है. और उनके अगले मॉडल में रिटेलर उनका मतलब रिटेलर का स्टॉक, रिटेलर की सर्विस यूज करने का उनका प्लान है. तो रिटेलर को एक नया बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाली है, डेफिनेटली आने वाली है. इसी के साथ में कहना चाहूंगा, नई सोच लाइए. मेरे जो भाई दो दो तीन तीन लोग एक बिजनेस में बैठे हैं, दिनेश भाई मुझे फिक्र ज्यादा उसकी होती है, बिजनेस इतना बड़ा नहीं कि 2 लोगों के लिए जगह है. समय आया है कि आप सोचो कि मैं नया क्या कर सकता हूँ. जिनके यहाँ ज्यादा है, जिनके यहाँ कम है, वो सवाल नहीं है, पर मैं नया क्या है. और मैं एक कहना चाहूंगा, ये फेसबुक वगैरह सब इंडिया की तरफ और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की तरफ बहुत देख रहे हैं. मैं कहना चाहूंगा, अभी विमल भाई शाह भी थे परसों और अभय जी श्रीमाल थे एक वेबिनार में. अफ्रीका और इंडिया, ये 2 मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाले वर्ल्ड के. चाइना की काफी फैक्ट्रियां इमीडिएट नहीं आएगी, लेकिन एक अक्ल सब पूरी दुनिया सीख गई. एक देश के ऊपर, एक सप्लायर के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं कर सकते. तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली है. और मेरे सब भाइयों को मैं कहना चाहूंगा, भाई साहब, ये समंदर है, जितनी हिम्मत है पानी पी लो. बिलीव मी फॉर दिस, इंडिया हैज गॉट ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी. और जो मोदी जी बोल रहे हैं ना, हमारी सेल्फ कंजम्पशन इतनी है, जबरदस्त है. करने वाले को करने वाला चाहिए, इतना काम है. अभी फार्मा में ओपन हो रहा है, हेल्थ केयर में मैं जब देखता हूँ परसेंटेज टू जीडीपी, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं ऐसा समझ लगने लगा है. फार्मा है, आपका हेल्थ केयर है, फूड प्रोडक्ट्स है, इतना सेल्फ कंजम्पशन है कि कोई हिसाब नहीं है. और ये डिमांड देखिए, अभी परसों के दिन ऑनलाइन इमीडिएटली मारुति ने कुछ 1600 गाड़ियों की डिलीवरी की. हमको लगा था कोई गाड़ी लेने को जाने वाला है. 605 तो हुंडई ने की है डिलीवरी. तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये पॉज बटन है, खत्म नहीं होगा. तो आप नई सोच के साथ में क्या क्या नया कर सकते हो, क्या नया स्टाइल से कर सकते हो. 2 चीज की जरूरत है हम बिजनेसमैन को. आज तक हम लोग अपना फाइनेंस और बिजनेस का फाइनेंस एक ही होता है. मैं आप में से हूँ, जो भी बोल रहा हूँ मैं आप में से हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, लोगों से बात करता हूँ. तो इसमें हमने कभी सोचा ही नहीं कि कंपनी का फाइनेंस और अपना फाइनेंस थोड़ा अलग होना चाहिए, अपना एक पॉकेट होना चाहिए. जब कंपनी को पैसा लगता है, अपना पैसा लगा देते हैं, अपने को लगता है कंपनी से निकाल लेते हैं. लेकिन हमको एक
अलग से पॉकेट चाहिए, एक वॉलेट चाहिए। आप अभी मतलब इमीडिएटली 1 या 2 महीने के बाद में आपकी सैलरी हो या आपका विड्रॉल हो, घर खर्चा छोड़ के अपने एक दूसरे पॉकेट में डालना चालू करो। फिर समझ में आएगा सच में पैसा निकलता है कि नहीं निकलता। और कोई इमरजेंसी अपना एक अलग से एक फाइनेंस होना चाहिए। जैसे अभी का टाइम आया, कभी भी इमरजेंसी के लिए अपना फाइनेंस एक अलग होना चाहिए। और दूसरी एक अहम बात है, जब आप मैन पावर की तरफ देखोगे, एफिशिएंसी बिजनेस में लाना चाहोगे, मेरे सब मित्र यहाँ काफी यंग है, तो हम क्या क्या टेक्नोलॉजी का वापर कर सकते हैं। अभी देखिए ऑफिस बंद हो गए, जिनको ऑनलाइन पेमेंट नहीं जमता है, जिनके सुविधा है कि घर पे बैठ के कंप्यूटर का पूरा डेटा एक्सेस करे, आज उनके पास आउटस्टैंडिंग की लिस्ट है जो कस्टमर को फोन कर सकते हैं। काफी लोगों को देखा मैंने ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं किया है, तो अभी बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया तो अभी मैं कैसे करूँ, ऑफिस बंद है। तो हमको एक अभी समझ आनी चाहिए कि एक क्राइसिस में हम ऐसी कुछ कुछ व्यवस्था करें कि इमरजेंसी में अपने घरों से भी हम काम कर सके, इमरजेंसी में हम लोग या नेट बैंकिंग कर सके। अभी नोटों का तो चलन काफी दिन लोग सोचेंगे, पर डिजिटल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे, बी पे, पेटीएम, वॉलेट, ये सब हमको कस्टमर को ऑप्शन देना पड़ेगा। हमको ऑनलाइन पहुंचना पड़ेगा। देखिए एक हमारी सोच है, हम बैठे ये मार्केट में तो ये मंदी है वो मंदी है। दुनिया में मंदी सब मार्केट में एट ए टाइम नहीं होती है, पर हमारी रीच नहीं है, हमने सोचा नहीं है। तो ये एक ऐसे जमाने में है हम, जो जैक वेल्स ने कहा है, ज्योग्राफी इज बिकमिंग हिस्ट्री। ये 10 साल पहले कहा था उन्होंने। तो हम कहाँ पे भी बैठे हो, क्या हम कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। एक मजे का एक एग्जांपल देता हूँ। 2 दिन पहले मैं इंडिया के होम्योपैथी डॉक्टर्स के वेबिनार पे मुझे उन्होंने बुलाया था। तो उनको हमने मतलब जब बात निकली कि अभी तक सोचा ही नहीं था कि क्यों नहीं हम कंसल्टिंग करें, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अभी परमिशन दी है। क्यों मैनेजमेंट हम जाके और डॉक्टर के दवाखाने में एक एक घंटा बैठते, वो टीवी देखते या पुराने मैगजीन देखते, क्यों नहीं हमारी अपॉइंटमेंट ऐप के ऊपर बुक होती है, क्यों नहीं हमको मैसेज आता है अपॉइंटमेंट आधा घंटा लेट चल रहा है। पहले सिलेंडर आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर का कोई अपॉइंटमेंट का कोई सिस्टम नहीं। या फिर ऑनलाइन आज जूम के ऊपर वो कंसल्ट करता है, उनको देखना जरूरी है पेशेंट को, 15-15 मिनट में देखे, वो पेमेंट ऑटोमेटिक आ जाता है। तो उन्होंने काफी इंटरेस्ट लिया। और एक हमारे माई रिटेल कोच करके डॉक्टर रूपल अग्रवाल है, वो ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं। आपको यदि इंटरेस्ट है तो मैं फॉरवर्ड करूंगा लिंक। तो ऑनलाइन कैसा जाने का या सोशल मीडिया पे प्रेजेंस कैसा लाने का, तो वो डॉक्टर भी सोचने लगे कि, और वहां पे दुबई की डॉक्टर थी, मेघालय की डॉक्टर थी, तमिलनाडु से थी, पूरा ऑल इंडिया से थी। तो वो भी सोचने लगे अरे हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो हम लोग भी ऑनलाइन प्रेजेंस जहां हो सकता है कस्टमर के पास पहुंचेंगे, नया कस्टमर बेस बढ़ाएंगे। ये सोच हमको लानी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर भी 2 महीने में उनको भी तकलीफ है। तो हमको नए मार्केट, नए प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, और हमारा रेवेन्यू बढ़ा के ये साल अपना बिजनेस वहां तक नहीं, उससे आगे कैसा लेके जा सकते हैं। हम एक लाइन का सोचते थे, इतने दिन करेंगे कुछ नया करेंगे। तो चलो भाई अभी टाइम आया है, क्या नया करते हो, स्टडी कर लो। मुझे काफी लोग बोलते हैं कि अभी मैं चालू करूँ क्या। देखिए चालू करो मतलब कल मत चालू करो, लेकिन उसका स्टडी करके, एनालिसिस करके सब तैयार रखो। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप चालू कर सकते हैं। और जबरदस्त इंडिया में ताकत है भाई। ये सोच इधर है, आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर है। और मैं जो सक्सेसफुल लोगों का सुनता हूँ, प्रदीप जी राठौड़ हो या भाई जैसे श्रीमान हो, या गणपत जी, अपने गणपत जी चौधरी है, इनका जब मैं वेबिनार सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या फर्क है इनमें और हमारे में। इनकी सोच में फर्क, इनके और सबके, पृथ्वीराज जी कोठारी इतने बैकग्राउंड से आए हैं, कहाँ के कहाँ गए, और ये लोग आज भी बहुत पॉजिटिव है। तो आने वाले दिनों में ये पॉज का बटन खुल जाएगा, बिजनेसेस चालू होंगे, कस्टमर धीरे धीरे आएगा। हाँ कोई कोई पेरिशेबल सीजन है वो गए, अभी लग्न सराई गेली, बट देयर विल बी अगेन इन दिसंबर। ट्रैवलिंग लोग बोलते हैं लोग भूल जाएंगे, कुछ नहीं, खुलता जाएगा तो दिवाली में सब लोग वापस जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान। जैसे फ्लाइट्स खुलेंगी वापस लोग जाना चालू करेंगे। तो यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज है इस देश में। तो ये हमें देखना है, ये नई सोच लानी है। ये हम प्रॉब्लम की तरफ देखते बैठे तो कुछ नहीं होना है।
You will be a PhD in all this crisis. You can write a thesis, but you can't do anything else than that. हम लोग इतना सीख रहे। अभी मेरा देखिए, मेरी विजिबिलिटी गए 15 दिन में इतने लोगों से मैंने बात की। एक मुझे अपॉर्चुनिटी आई, मैंने एक ग्रुप का किया, पहले दूसरे ग्रुप का इनविटेशन आया, मैं नए लोगों को रोज मिल रहा हूँ, अपने घरों में बैठ के सबसे बातें कर रहा हूँ। इतना कंटेंट है। मैं एक कोर्स एरा करके साइट है, 110 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के कोर्सेज वो साइट पे है, तो वो फ्री है। आप उसमें जो चाहिए वो पढ़ सकते हैं। यदि आपको सर्टिफिकेट लगा, डिप्लोमा लगा, तो यू हैव टू पे, अदरवाइज कोर्सेज आर फ्री। आप पढ़ सकते हैं। रोज बैठ के आधा घंटा 1 घंटा अपने डायरी में लिखो कि खुलने के बाद में मैं क्या क्या करूं। और मुझे जो पॉजिटिव लोग मिलते हैं वो तो बोलते हैं कि बस खुलने का टाइम है, हमको ये करना है वो करना है। तो ये नई सोच के साथ में पॉजिटिवली विचार करके हम चैलेंज ले लेंगे, अपना बिजनेस तो कोई कम नहीं होने का चांस नहीं है, हम लोग उसको ज्यादा बढ़ाएंगे। हम काफी दिन से सोच रहे थे नई लाइन के बारे में, तो क्या मैं नई लाइन के बारे में सोच रहा हूँ, सोच सकता हूँ, उसके बारे में कुछ रिसर्च कर सकता हूँ। फोन पे बात कर, अभय जी श्री श्रीमान ने तो बोला है मुझे, और कभी भी चाहिए तो मैं वेबिनार करूंगा। दिनेश भाई बहुत सुनने जैसा, ऐसी हस्ती है कि पूछिए मत। मैं एक दिन उनके साथ में रहा हूँ और इतना अच्छा हाँ सर। वेबिनार हुआ। तो हम लोग चाहिए, आपको चाहिए तो अभय जी को सुनना चाहिए। बिल्कुल। इन्होंने एक एनिमेशन कंपनी चालू की और फिर उसको 3 साल काम करे, 4 साल काम करके 400 करोड़ में बेची। तो ये अपने में से आदमी, और अभी क्या क्या रिसर्च कर रहे। हम लोग चेन्नई गए थे तो उन्होंने हैंड सैनिटाइजर नैनो पार्टिकल का बना के सबको एक एक ऐसा गिफ्ट दिया था। वो बोलते हैं अभी के टाइम में, इतने दिन वो चला नहीं था प्रोडक्ट या रिसर्च में था, अभी के टाइम में 27 कंट्रीज में डे नाइट उसकी फैक्ट्री चल रही है, 27 कंट्रीज में एक्सपोर्ट है। तो ऐसे लोगों को सुनेंगे, नई सोच लाएंगे, और ये नहीं मानेंगे कि मेरा बिजनेस कम होगा। नहीं होगा यदि नहीं मानेंगे, और मान के चलेंगे 40-50% कम होगा तो वो 60% कम होगा। हम कॉस्ट रिडक्शन की तरफ ध्यान देंगे, बिजनेस कैसा बढ़ाने का उसकी तरफ ध्यान देंगे, अपनी केयर लेंगे। और एक बात है कि जब ये खुलेगा तो पहला सवाल ये है कि हम लोग अपनी केयर कैसे लेंगे, सब प्रिकॉशन लेंगे, ग्लव्स, सैनिटाइजर, आपके मास्क, ये सब की फिक्र हम हमारे लोगों की अपनी लेंगे। और काफी पैकेजेस तो आने आ रहे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग किसी अच्छे कंसल्टेंट को लाएंगे कि गवर्नमेंट जो बोलता है ये जो पैकेजेस है, क्योंकि व्यापारी कभी आगे आता ही नहीं मदद लेने को, ये आज तक का एक्सपीरियंस है। मदद देने को आएगा लेकिन लेने को कभी नहीं आता है। लेकिन गवर्नमेंट की जो स्कीम है, पहले तो सबने एसएमई लिस्टिंग करना चाहिए। दिनेश भाई, आई एम रिपीटिंग अगेन, हाँ सर। एसएमई लिस्टिंग इतना आसान है कि आपको ऑनलाइन वो लिस्टिंग होता है, तो वो तो करके रखिए एसएमई लिस्टिंग। और फिर मुद्रा बैंक है, सिडबी बैंक है, या कोई कंसल्टेंट को लाके वी कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि भाई ये गवर्नमेंट क्या क्या दे रहा है और हम उसका बेनिफिट। एक बहुत जबरदस्त बात आई है कि 50,000 करोड़ गवर्नमेंट वांट्स टू पुट इन एसएमईज इन देयर शेयर स्टॉक्स। एसएमई लिस्टिंग कंपनियों में गवर्नमेंट 50,000 करोड़ लगाएगा। तो हमारे में से कितने लोगों ने एसएमई लिस्टिंग का सुना है या सोचा है? अरे जबरदस्त ताकत है, और इंडिया इज नॉट गोइंग टू लुक बैक। लिटिल हियर एंड देयर कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। विद दिस मुझे गारंटी है कि आप लोग बहुत अच्छा काम करोगे, सॉल्यूशन की तरफ काम करोगे, नई सोच लाओगे। हर चीज अपने लाइफ में हम यही चीज हम करते आ रहे, तो कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्या नए तरीके से कर सकते हैं, इसकी सोच लानी पड़ेगी। और फिर यदि इस सोच के साथ में चलेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम और आगे बहुत बढ़ सकते हैं। जेबीएन में अपने मेंबर्स सब यंग है, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज दिनेश जी जितना काम करते हैं, किशोर भाई काम करते हैं, और उनकी पूरी कमेटी, सोनिका और अमित जी, ये सब काम करते हैं। मैंने देखा है इनके ऑल इंडिया के इवेंट है, और आपको एक्सेस बड़ी बड़ी हस्तियों का इतना आसानी से है कि बोल नहीं सकते हैं। इसके साथ में मैं अपने विचार या मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए। मेरी कोई सिखाने की कैपेसिटी भी नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ आपके साथ में शेयर करूं, आपका भी सुनूं, और
इस कामना के साथ में, इस पूरे विश्वास के साथ में मैं एंड करूंगा कि आने वाले दिनों में ये पॉज का बटन खुल जाएगा और हम है उसमें बहुत कुछ प्रगति कर जाएंगे। तो दिनेश भाई थैंक यू वेरी मच, और कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चकोर भाई। बहुत ही प्रैक्टिकल सेशन था आपका, और बहुत ही यूजफुल बातें आपने जो बताई, जो छोटी छोटी बातें एक्चुअली सबके दिमाग में आती नहीं है, लेकिन उसका काम बहुत आता है, उसका बेनिफिट बहुत होता है। तो आपने ऐसी सब बातें बताई है, बहुत धन्यवाद आपका। और अपना एक कभी क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन कर लेते हैं। उसके पहले मेरा एक क्वेश्चन है, आपने जो एसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, तो आई थिंक एसएमई एंड एमएसएमई दोनों सेम ही है ना, एक ही बात है ना? हाँ, मतलब बहुत छोटा होता है उसको माइक्रो बोलते हैं, फिर स्मॉल बोलते हैं, फिर मीडियम बोलते हैं। एमएसएमई एंड एसएमई, नॉर्मली वी ऑल फिट इनटू एसएमई। तो हो सकता है कि आपको माइक्रो मिल सके। हेलो, कुड यू हियर मी दिनेश भाई? यस यस सर। हाँ हाँ आपने हाँ सुना? हाँ, पर इसकी सुना है, सुना। जानकारी ज्यादा। हाँ, सुनना और सुनना दिनेश भाई, सुनना। हम और एक अच्छा एक पैनल ला सकते हैं जो हाँ हाँ। कंपनी सेक्रेटरी है। आज के दिन में एक पैनल ऐसा होना चाहिए कि जो भाई हम एलएलपी करें, पार्टनरशिप करें, प्रोप्राइटरी करें, प्राइवेट लिमिटेड करें, और उसमें क्या क्या लाइव आज आसानी से हम लोग डायरेक्टर बन रहे हैं, उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, या एलएलपी टू प्राइवेट लिमिटेड टू एलएलपी, इसकी भी जानकारी लेनी जरूरी है। और मैं जो एसएमई बोल रहा हूँ, एमएसएमई बोलते हैं उसको, हाँ, माइक्रो एंड बराबर। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। हाँ, राइट। क्योंकि मैंने उसमें तो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, मैंने कहा ये कोई एसएमई का अलग नहीं होता है नहीं, या कैसे होता यहाँ स्वाति रुनवाल कंपनी सेक्रेटरी है, वो कहती है कि वो हेल्प कर सकते हैं एमएसएमई लिस्टिंग में। उन्होंने है? चैट बॉक्स में डाला है। सो यस यस। स्वाति जी, यू कैन गिव योर कॉन्टेक्ट्स, और दिनेश जी आप सबको बोल सकते हैं कि स्वाति जी रुनवाल आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपने हमारे जेबीएन की मेंबर है, बहुत ही एंथुसियास्टिक मेंबर भी है। तो हाँ, डेफिनेटली our services will be very useful. If others have been asking questions, you can take up those questions. वो एक क्वेश्चन मेरे को दिख रहा राइट। है। सर प्लीज गिव सम इनपुट्स ऑन सर्विस इंडस्ट्री एज वेल। Can I ask who has asked this question? Can we see him? Chetan? Yeah, just yeah, Pritesh. Hi Pritesh, I've allowed you to talk. You can unmute and ask your question or elaborate further on your question. Okay. किशोर भाई का वीडियो भी ऑफ है Yeah. उन्होंने। So actually, I'm okay. What Can lost? you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. Okay. So sir, actually, I am into event management business. So I just want to understand like what should we do? Something different. Obviously, we are working on virtual events, and we have tied up with company in USA and Belgium for virtual events. But apart from that, what else would you suggest us? It's a very broad question. You have to study what the market is. Virtual event पे है तो you should have been seen with so many events coming up in this time where the screen time has gone up. So अभी एक नया line खुल गया कि you can go into major virtual events. That itself is a big line, irrespective of where you are sitting. पहले के इवेंट में आपको फिजिकली लॉजिस्टिक्स ये सब होता था, अभी वर्चुअल में तो इतने दरवाजे खुल गए हैं कि you can be doing events all over the world, sourcing from all over the world, launching for all over the world, reaching people all over the world. So huge domain open for you, huge market open for you actually. And you have to study what are the trends coming in the consumer behavior. Next 6 months, what the consumers would like to attend, where he would like to go, what he would like to eat, where he would like to spend, और वैसे इवेंट आपको लाने पड़ेंगे. There's one way, ये मेरा इवेंट है, आने का तो आ जाओ. दूसरा है, ये आपको चाहिए तो मैं कर रहा हूँ. So if you start thinking that way, I think so, Pritesh ji, market is huge. Right, so we have a question from Gautam Muttaji. I'll allow Gautam to go ahead and ask his question. Gautam ji, go ahead. Yeah. And along with that, I would like to say someone in broader service industry is a fantastic industry. बहुत अच्छी इंडस्ट्री है
उसमें सबसे अच्छा हम बनियों के लिए एक मैसेज ऐसा है, सर्विस इंडस्ट्री में आपकी आमदनी आपके इन्वेस्टमेंट से डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकती है। सर्विस इंडस्ट्री में 10 लाख लगाया तो आप 1 करोड़ भी कमा सकते हो। बाकी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में 1 करोड़ लगाने के बाद में 10 लाख मिलता है पॉसिबली। पर सर्विस इंडस्ट्री के अपने चेतन भाई इज इनटू सर्विस इंडस्ट्री, इज इनटू कंसल्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑल, सो ही विल एग्री कि पर you need a different skill set to do that you have to upgrade. Yes. Right. Gautam ji, can you unmute yourself and ask your question? Gautam Mutta. Okay, we'll move on to the next question then. Ramesh Gandhi ji, you can go ahead and ask your question. You can unmute yourself and ask your question. Hello. Yeah, Ramesh. Yes, Ramesh ji, we can hear you. Go ahead. Getting my voice? Yeah. Can you put on your video? Yeah. Good evening, Chakurji. It is very Yes. nice video. Yeah. Yeah. Video is on. Chakurji, Yeah, you I can told hear. registration of me. When I went through the form, Huh? only for the manufacturer service, not for the traders. I'll have to check. Hello. I'll have to check, or Swati Runwal Hello. will help. Hello. Yeah. I can hear you. Can you hear me? Tell me. Yeah. See, Yeah, you can hear me. Yeah. Just where check and let me know. Yeah, where Swati will help you, I think so. How traders can register in MSME. But I may not have. Where I have registered, I have a manufacturing. Okay. So I registered over there. Traders, I don't. Yeah. So that is one. Yeah, that was one question. Hello. Yeah, I can hear you. That's all. Thank you. Okay. Thanks, Ramesh bhai. Right, we have a question on the Q&A chat, Chakurji. Harshal Oswal wants to know, how do you look at construction industry after the lockdown or after the COVID-19 situation is over? Yeah, I think so. I have a very little knowledge, but of course, what I've been hearing through different webinars, and I think so Rajesh Sankla is also here he's in the participant. But what I've been hearing, it will take some time. जहाँ प्राइम है, जहाँ ऑलरेडी कस्टमर था, वो तो आएगा. आई एम वरीड अबाउट द फियर ऑफ लूजिंग जॉब्स. यदि जॉब जाने की फियर आती है तो जो कस्टमर ईएमआई पे लेने वाला है वो डरता है, तो वो थोड़े दिन रुकेगा. जॉब में स्टेबिलिटी आएगी तो मार्केट इज गोइंग टू बी देयर ऑलवेज. बिजनेसमैन विल होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल कि भाई जरा रुकते हैं, पैसे पे बैठते हैं, घाई नहीं करते, थोड़े दिन के बाद लेंगे. और एक क्लास है जो इनको लेना ही था, मे बी दे विल कम एंड नेगोशिएट कि भैया कम करो, ये कम करो. तो इट विल डिपेंड ऑन व्हाट ही वांट्स टू बाय और वहाँ ऑप्शंस कितने हैं. बट इन जनरल डिस्क्रिशनरी बाइंग वेयर इट कैन बी पोस्टपोन फॉर 2 months 3 months विल टेक लिटिल मोर टाइम फॉर इट टू कम बैक. पर ये पूरा बंद ही होगा ऐसा ही नहीं है. मार्केट तो चलने वाला है. एंड क्रेडाई एंड ऑल आर वेरी पॉजिटिव. मैं उस दिन शांतिलाल जी कटारिया और राजेश जी सांकला का वेबिनार सुन रहा था, वो तो बहुत पॉजिटिव है. और पूना स्पेशली बहुत पॉजिटिव है. पूना में डिमांड रहेगी. एक सिंपल सी बात है, जहाँ जॉब रहते हैं वहाँ रियल एस्टेट बूम होता है. न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड, जॉब्स आर स्टेबल, रियल एस्टेट definitely will do well. And I think so some kind of relief positively already kuch aane lage hai. This industry is due to get some reliefs or packages from the government, which I am expecting to come. Yes. Sir, the Harshal has another follow-up on this actually. He is more keen on understanding how will the suppliers of the construction sector get impacted. I believe he's in the glass business, and that's probably the reason he's asking. His main supplier, he might be a supplier to various real estate owners, right? So that's his question, that how will the impact for the regular supplies for builders and interior field be? See again, थोड़ा पोस्टपोन होगा. जिन्होंने इंटीरियर का काम चालू किया, आई एम वन ऑफ देम. नाउ आई एम ईगर टू कंप्लीट द वर्क. तो मुझे तो लगने ही वाला है.
जो फ्लैट तैयार है, जो इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तैयार है, जिसको कस्टमर आने वाला है, अभी रजिस्ट्रेशन बंद है या चालू होता है तो देखिए कितने लोग आते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये पूरा बंद नहीं होने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा। आज कंस्ट्रक्शन को मेजर प्रॉब्लम है लेबर साइड पे लाने का, काम चालू करने का। और ऐसा है कि कोई भी इंडस्ट्री चालू करने को नियरली उसके इनपुट 50-60% इंडस्ट्री से आते हैं। तो एक इंडस्ट्री चालू करके इमीडिएट चालू नहीं होते, उनको सीमेंट का प्रॉब्लम है, उनको स्टील का प्रॉब्लम है, वो लोग भाव ज्यादा मांग रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बट डोंट वरी, कैन यू रीच टू मोर मार्केट्स, कैन यू सी वेयर द वर्क इज गोइंग ऑन, वहां जाके पहुंच सकते हैं तो जरूर जाएगा। इंटीरियर वही करता है जिसके पास पैसा हो, तो थोड़ा सोचेगा लेकिन वो पूरा तो करेगा। हाँ, जहाँ जॉब्स थ्रेट में आएंगे, आई रियली डोंट नो कि जॉब्स में कितनी थ्रेट आएगी। आईटी सॉफ्टवेयर या यूएस जॉब्स कट डाउन करते हैं और हमारे H1B वीजा की कुछ तकलीफ हो गई तो वहाँ के एक बच्चे पे यहाँ की पूरी फैमिली सरवाइव करती है, एंड दे आर आल्सो मेजर बायर्स फॉर रियल एस्टेट। सो वन कैन एग्जैक्टली नॉट प्रेडिक्ट, लेकिन आप समझ के चलो ना कि अपना बिजनेस तो नहीं कम होगा, हम और 10 कस्टमर जोड़ेंगे, जहां माल जाता है वहां पहुंचेंगे, हम बैठे रहेंगे और वही कस्टमर के साथ में उतना ही बिजनेस होगा, इज नॉट पॉसिबल। कैन यू थिंक ऑफ अदर मार्केट्स, हाउ कैन यू रीच ऑनलाइन, हाउ कैन यू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, ये आपको चैलेंज। Thank you so much. So we got a clarification on the registration part in the chat itself. So I thought I'll highlight it for the benefit of all the members here. That traders are typically not allowed to register under MSME. Only service providers and manufacturers can register. Traders might be registered while giving details of pilot manufacturing details with some manufacturing facilities. Okay, fine. So right. We have a question from Sunil Jain. I'll just yes, Sunil, you can go ahead with your question. Unmute yourself and go ahead with the question. हेलो सर, मैं सुनील जैन। मेरा बेसिकली लोन का ही काम है फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो जितने भी अपने जीतो के मेंबर्स हैं उनको एमएसएमई की स्कीम के बारे में जैसा चाहिए कुछ नॉलेज, तो जैसा ट्रेडर चेतन ने बताया कि ट्रेडर्स नॉट अलाउड इन एमएसएमई। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। हेलो, हाँ आ रही है, आई कैन हियर यू। हाँ, तो अभी अपने जेबीएन के अपने ब्लास्टर में दिलीप जैन करके है, उन्होंने एमएसएमई में रजिस्टर्ड किया है और उनको मैंने सीजीटीएमएससी स्कीम है गवर्नमेंट का, तो उसका टर्नओवर का 20% अपने को लोन मिलता है। टू 20 लाख मैंने उनको लोन करा के दिया है, तो ट्रेडर्स को भी मिलता है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आर यू टॉकिंग की जो गवर्नमेंट बोल रहा है? कहा है कि connection is not very clear. Hello. Yeah, Sunil bhai, you can go ahead now. Hello. आवाज नहीं आ रही है उनकी। ठीक है, हेलो, आवाज आ रहा है? कट हो रही है, लैग आ रहा है, लैग आ रही है। हेलो, अभी आवाज आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है। हेलो, हाँ अभी आ रही है आवाज। हेलो, I think सुनील जी की आवाज कनेक्शन में कुछ इशू है, so we'll move to the next question. अगर किसी और के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या you can put your question in the Q&A. चेतन, या दिनेश जी, अगर राजेश जी साकला अगर अभी है इसमें वेबिनार में प्रेजेंट है तो मैं उनको वेलकम करना चाहूंगा। राजेश जी, yes, I have. Rajesh ji, can you hear us? Yeah, Rajesh ji. हेलो, Yes. हाँ राजेश जी नमस्ते सर, वेलकम आपका वेबिनार।
उनका mic on है क्या? Yes, I have even made him the panelist, so we should be able to turn on his video also now. शायद Rajesh ji, you're on mute. You need to unmute yourself and speak. Actually, आप mute पे हैं राजेश जी? किया जय गणेश। जय गणेश, जय गणेश। Yes, जय गणेश सर, और बहुत धन्यवाद आपका वेबिनार पे आने के लिए। आपका चेहरा दिखा तो एकदम सब खुश हो गए, पॉजिटिविटी लाई आपने। नहीं, आप सब लोगों के, आप हमारे दोस्त कॉलेज के, चकुर भाई। यस सर, अभी किसी का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में कोई क्वेश्चन था, तो मेरे हिसाब से आप सबसे बेस्ट इसमें आंसर कर सकते हैं कि ये ऐसा है दिनेश भाई, राजेश भाई को पूरा वेबिनार चाहिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में। इतना उनका उस दिन इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, और उनका जो एंथुसियाज्म है ना, बहुत जबरदस्त है। बराबर। नहीं तो एक नेक्स्ट वेबिनार पूरा राजेश भाई के साथ ही करना पड़ेगा। और काफी लोगों को कंस्ट्रक्शन में बहुत सवाल है। बराबर। हाँ, पूछिए ना, कोई क्वेश्चन पूछिए ना। हाँ, एक ने पूछा था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फ्यूचर। हाँ बोलो ना, आपको सुनाई दे रहा है? किशोर भाई, राजेश भाई, एक मिनट। किशोर भाई, मैं एक जगह बैठता हूँ, मैं एक जगह आया हूँ। हाँ बोलो। हाँ, एक सवाल आया था राजेश भाई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर रहेगा, कैसे चलेगा? सो आप शॉर्ट में उनको बता दीजिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होगा। राजेश भाई, आपका कनेक्शन वीक दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है, जब 60% होने वाला देश का, को मालूम है नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी फ्लैट 1,38 करोड़, 1,00,000 राजेश भाई, आपका कनेक्शन बहुत वीक है। किसी ने 2 लाख फीट फ्लैट रेडी पोजीशन बताया, तो इट वाज जस्ट 13,000। तो 13,000 मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास। 13,000 फ्लैट पुणे जाए, मेरे पास पड़े ऐसे बना 13,000 फ्लैट मिले अभी। हेलो हेलो राजेश भाई, आपका कनेक्शन। एक मिनट, मैं ये चेंज करता हूँ। 1 मिनट, मैं 1 मिनट बदल तो बता। चेतन भाई, is there any question? हाँ. Yeah, there's one more question related to real estate. So I'll just read out that question. This question is from Mona Lunawat. She says they've. Yeah, I would like to answer. I would like to answer a question. We are going for online consultation also. See, Mona ji, what are you waiting for? I don't understand. I have an example of an architect. He's my cousin. You won't believe he started online consultation and started giving, taking Zoom meetings and understanding the clients. And believe me, he is doing a lot of business online. He's got customers right from Guwahati. He's sending those drawings, and execution the local person does. But he has opened the entire gamut. So what are you waiting for? Your presence on social media is the best part. Is with interiors, you don't know where you are reaching with online. That's the first thing. And how to do it, if you would like to learn and all, I'll pass the link to Dinesh Bhai. If he feels right, he can pass it to you. But it's high time, and you won't understand what all is going online. So if today education can come online, even that day Mohandas Pai was saying, and your Chetan is there. See, if education can, if your and my granddaughter can study online, my granddaughter every day morning 9 till evening 4 o'clock, she is studying online. So this online has opened. We all got used to it. And one shocking figure is internet consumption is more in rural part. Chetan, can you believe rural part? First time, rural consumption of internet is more gone above urban plan.
Yes, Chetan. I'll just give you an example on that. Yeah. So please. we've recently started providing training for IELTS. This is a mandatory exam that students have to give if they want to study abroad. We started doing it online. I have students from remote parts of Kolhapur, remote parts of tier 1, tier 2 cities, where they're sitting in front of a farm with their iPad and taking training. So that's the reach of online. I told you the example of homeopathic doctors. You know, homeopathy, for them to see the customer, to see the entire emotion is very important. If that is going online. So online is the way. Your presence online. If you're not online present, I think so. So it's like someone saying कि मैं आपको postcard लिखूंगा, आप मेरे को जवाब दे दो. It's like that. Yes, Rajesh bhai is there. Yeah, we got Rajesh back, please. Yes. एक सवाल आया था राजेश भाई रियल एस्टेट का फ्यूचर में. हाँ, तो मैं चकोर भाई वही बता रहा हूँ. अपने देश का जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन 130-135 करोड़ का है. और अपने देश की जो एज में मर्यादा है, आयु मर्यादा अभी इस मिनट में जो है, मतलब जो आयुष्मान अपने देश का है वो 30 से भी कम है, 60% लोगों का. तो पॉपुलेशन तो बढ़ने वाला है. सेकंड थिंग, अपने मैं पुणे की बात ज्यादा करूंगा, महाराष्ट्र की बात करूंगा, क्योंकि पुणे और महाराष्ट्र में जॉब बहुत है. पुणे में आज आप देख रहे हो कि मैक्सिमम लोग जॉब छोड़ के जाने वाले जो थे, चाहे वो सादा वर्कर हो या बड़ा वर्कर हो. आज अगर इंडस्ट्री ये जो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अनस्किल्ड लोगों के लिए सबसे ज्यादा अगर जॉब किधर रहते हैं तो फार्मिंग के बाद में इस फील्ड में होता है. और इसलिए आपको पता रहेगा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने उस टाइम ATIB स्कीम लाई थी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम दो तो देश की 40 इंडस्ट्री बढ़ेगी. सीमेंट, स्टील, आयरन, जो मटेरियल लगता है, टाइल लेके इंडस्ट्री से लेके वो. और वो स्कीम जो थी 1998 की ATIB, नो इनकम टैक्स फॉर बिल्डर, वो 2012 तक चली. क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि यही एक इंडस्ट्री है जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें अनस्किल्ड लोगों को जॉब मिलेगा, लाखों लोगों को जॉब मिलेगा. उसके बाद में घर बनता है तो फिर फर्नीचर बनता है, फिर ये जो साइकिल है उसमें घर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और आज जो पुणे में एक नई सिस्टम आई थी कि उठो, कोई भी आता था, कहीं भी जॉब बदलते थे, बेंगलोर से पुणे आया तो रेंट के ऊपर घर लिया, रेंट का फर्नीचर लाया, निकल गया. अब ये 2 महीने में 3 महीने में सबको अंडरस्टैंडिंग आ चुका है कि अपना घर चाहिए. गवर्नमेंट पीछे रहती है, इंस्टॉलमेंट का लफड़ा नहीं, लेकिन अपने खुद का घर चाहिए. अगर फिर कोविड जैसी कोई परिस्थिति आई तो हाल खराब होंगे. और आपको एक बता देता हूँ कि अफोर्डेबल हाउसिंग में कभी भी मरना नहीं. यस. राजेश भाई 20 लाख, 30 लाख, 50-40 लाख तक. राजेश भाई कल एक पैकेज दिया है, वो हम क्या क्रेडिट लिंक्ड क्या EMI या क्या वो क्या है, वर्कर हाउसिंग के लिए 1 साल के लिए नहीं, उनका लिमिट एक्सटेंड किया है. क्रेडिट लिंक्ड EMI का 1 साल 2,65,000, 2,85,000 का जो कि 65,000 का बेनिफिट था ना. हाँ. वो मैंने 2000 क्या था वो आगे तक दिया, 1 साल का बढ़ा के दिया. यस. तो राजेश भाई जय गणेश है, बुकिंग करेंगे. राजेश भाई जय गणेश है यहाँ पे. और लास्ट टाइम उनका वेबिनार में उन्होंने कहा कि कैसे कैसे तकलीफ में काम किया. मेरा कहना एक ही है, देखिए हर एक का धंधा अलग है, माहौल अलग है. अपने अपने बिजनेस में हर एक को सोचता है कि कैसा आगे जाने का है. और यही वही लोग है. राजेश जी सांकला, मैंने उनकी ग्रोथ देखी है. हम कहाँ कॉलेज में कहाँ पढ़ते थे, नमक का धंधा करते, आज रियल एस्टेट में इतना बड़ा काम कर रहे हैं. हर कोई अपने यहाँ माहिर है. तो इसमें सीख ये है कि वो इंडस्ट्री कैसे होने वाली है. वो जो फिगर देते हैं ना, उनकी स्टडी क्या है. अभी उस दिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 82,000 गोल्ड होगा. मैं बोला अच्छी बात है. तो मैं जब पढ़ने लगा तो उनका सर्वे क्या था चेतन जी, राजेश भाई, उन्होंने 2000 लोगों का सर्वे करके पूरा रिपोर्ट बनाया. अभी ये सर्वे पे कोई बोलता है ये कम होगा, ये भी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, लोग रेस्टोरेंट में ही नहीं जाएंगे. अभी मैं तो आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ रूपाली. कल सुबह खोलेगी तो मैं तो कॉफी पीने जाने वाला हूँ. सो ये बैठे बैठे फिर मेन क्वेश्चन इज हाउ यू एक्सपांड योर बिजनेस, हाउ यू रीच द राइट कस्टमर, how you give them right offer, how you give them the right, how you tickle them right in these days is the answer. Yes. I'll just quickly take one. कोई और अगर किसी के सवाल है, any last questions? We'll take the last couple of questions. अगर कोई और किसी की questions है, we have an excellent panel going here. We have Rajesh ji, we have
who has joined us. Okay, we got a question from Jitendra Bora. I'll just, yes, Jitendra ji, you can unmute yourself and speak. आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. Good evening, sir. Good evening. Myself Jitendra Bora from Jito chapter, Nasik Jito. Oh, okay. आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है. Yeah, tell me, Jitendra. Yes, sir. Is this? Hello. Yes, go ahead with your question. हाँ. 60 में भी था सर, पुणे में बहुत अच्छे से होस्ट हुआ था. आपके साथ सर मैं चेन्नई में भी था. ओके ओके. हाँ. अच्छा. सर मेरा शुगर, होलसेल शुगर का बिजनेस है. मैं शुगर ट्रेडिंग एंड सप्लाई का काम करता हूँ नासिक में, बल्क क्वांटिटी में. तो सर ये अभी आगे चल के जैसे हम बोलते हैं कि भाई चैनल सिस्टम बंद हो जाएगी आगे चल के, तो हमारे जैसे ना सर क्या चेंज लाना चाहिए और किस में आना चाहिए सर, क्योंकि उसके लिए मैं खुद बहुत बारीकी से देख रहा हूँ कि मैं किस में जाना चाहिए. तो अभी तक मेरे को कोई ऐसी लाइन नहीं मिल रही सर कि इसमें शिफ्ट हो. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? जितेंद्र जी, आपकी एज क्या है? आप यंग होगे. 37 सर, रनिंग 37. तो मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, दिस इज अ जनरल आंसर कि मधला माणूस संपणार. राइट सर. आई एम टेलिंग यू अगेन. और कमोडिटी में आप ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटी में आपका रेट और स्टॉक के सिवाय दूसरा कुछ भी दुनिया को बोल नहीं सकते. मेरी शुगर अच्छी है नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते. आज का भाव क्या है, और उसको कमोडिटी ट्रेडिंग बोलते हैं. तो कमोडिटी ट्रेडिंग में वैल्यू एडिशन बहुत कम होता है, और योर ओनली वे यू कैन अर्न मनी इज हाउ एफिशिएंटली यू आर मैनेजिंग योर कैपिटल. आपके कॉस्ट सेंटर कितने कम है, और आपका नॉलेज ऊपर जाएगा नीचे आएगा. So why cannot you think of a product? अभी हमारे विजय कुमार जी लोढ़ा है, बहुत अच्छे दोस्त है. राजेश भाई भी पहचानते होंगे, किशोर भाई, दिनेश भाई सब पहचानते हैं. जानता हूँ. हाँ, मेरी अभी भी उनसे एक घंटा बात होती है. They were distributors for Rawalgaon Sugars. And you won't believe. I'm supplying over there sugars. हाँ, तो अभी आप विजय कुमार जी से मिलिए ना. They have got 400 products they are making out of sugar. So can you think जब शुगर आपको इतनी समझती है तो उसकी क्या प्रोडक्ट है जो मैं लेके जा सकूं. मैं गुंटूर गया था, अपना पूरा समाज मिर्ची का वहां व्यापार करता है, इतना जबरदस्त. एक का भी खुद का ब्रांड नहीं है. दे आर जस्ट सप्लाइंग. और फिर मेरे को बोल रहे थे मैं ये मसाले को देता हूँ, वो मसाले को देता हूँ. मैं बोला तुम मसाले को देते हो, लेकिन कभी सोचा नहीं कि अपना मसाला होगा, अपनी एक बॉटल होगी कि हम मिर्ची टेबल पे मिर्ची आएगी, वो ब्रांडेड आएगी. तो मेरे को जितेंद्र, आप इमीडिएट नहीं हो सकता है, लेकिन स्टार्ट योर रिसर्च. हाउ कैन यू हैव योर ओन प्रोडक्ट आउट ऑफ शुगर और समथिंग टू डू विद शुगर, बिकॉज यू नो दैट मार्केट. बट ये बीच का आदमी सर, ये सब जगह इट्स ऑलवेज अंडर प्रेशर. और किशोर भाई, हमारी हमेशा की ये बात है. मेरे को दुख होता है, अपना 90% 95% समाज ट्रेडिंग डीलिंग में अटका हुआ है. तो मेरा अलग टॉपिक है. बट इंडिया इज अ प्रोडक्ट फॉर फूड प्रोडक्ट. क्या लिमिट ही नहीं है सर इसमें. पर कोई प्रोडक्ट विजुअलाइज जल्दी होता नहीं सर, क्योंकि वो कैसे करे, उसकी स्टार्टिंग कैसे करे, या कोई अपने को रास्ता बताने वाला सर थोड़ा सा. इसका एक ऐसा रहता है, मेरे को काफी लोग बोलते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट करूं, कौन सा माल बनाऊं, क्या बनाऊं. दुनिया में ऐसा कोई भी कंसल्टेंट बता के फायदा नहीं होता. बेस्ट कंसल्टेंट, बेस्ट यूनिवर्सिटी इन दिस वर्ल्ड इज मार्केट. ओके. सो आप महीना 2 महीना स्टडी करो, पेन पॉइंट क्या है, उसको कौन सा माल नहीं मिल रहा है. वो 2 मिनट में बोलता है सर ये बनाओ, ये अच्छा, आज तक कभी माल नहीं मिला, ये कभी ठीक नहीं मिला. तो ये मार्केट बताता है. और रास्ता क्यों नहीं मिलता है, बस नक्की करो, करना है. कैसा रास्ता नहीं मिलेगा. और बैठा हूं मैं कभी भी. क्वेश्चन है आपको. यस सर, बोलिए. किशोर भाई पूछूं? हाँ. चकोर भाई, अबे कल मोदी जी ने बताया 2 दिन पहले कि वोकल ही लोकल करे, वोकल के साथ में मतलब लोकल के साथ में वोकल बनो. और लोकल ने ही हमें बचाया है, लोकल ने हमें जिंदा रखा है. यानी मैं जो हमेशा कहता हूँ, क्या उसका मतलब यही तो नहीं कि हम लोगों ने हमारे पास के, हमारे जो बाजू वाला जो दुकानदार है, जो चाहे रेशन वाला हो, चाहे कपड़े वाला हो, चाहे ज्वेलरी वाला हो, जो कभी भी संकट आया तो खड़ा रहता है, उसके पास से कोशिश करो परचेस करने की. क्या यही तो मैसेज नहीं था उनका?
एब्सोल्युटली। और राजेश भाई आपने मैसेज भी डाला था, तो सब ग्रुप के ऊपर डाला था कितने दिन से। मैंने 24 अप्रैल को डाला था, वो परसों हाँ मेरे को याद है। मेरे को बोला। हाँ यस यस यस। एंड व्हाट ही मींस एक्चुअली आल्सो वन मोर थिंग कि हमारे यहाँ डिमांड है और हम लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं, और उसका एक अंडरलाइन स्टेटमेंट है, इट वाज आल्सो टू एड्रेस द वर्ल्ड दैट इंडिया इज गोइंग टू वेलकम फॉर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। वो आने वाला है। They want to welcome industries to set up in India. That is an underlined statement that's bound to come now. Yes. और वो पहले से भी उनका स्टेटमेंट रहा ना, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और इंडिया को कोई टाल नहीं सकता। 100% राजेश भाऊ, इतना कंजम्पशन है, इतना यंगस्टर पॉपुलेशन है, नो वन कैन ओवरलुक इंडिया। Chetan ji, you also must be experienced what they look at India as a big market. Chetan is into overseas consultancy for students, so they look at India. Who are the maximum? Sir, one short trend I will share on the same line. Please. We've seen a massive trend of students returning, which used to not be the case 5 to 8 years ago. Once the student would go, they would want to settle there. But we've seen a massive trend of students taking some experience, taking exposure, and returning to India to contribute in the growth, because they know exponential growth can happen in India. There, they will not have exponential growth. So that's a trend we've seen of late. Yeah. See the world watching India. See the figures. बॉस, पहला आईफोन आता था 2 महीने 6 महीने के बाद इंडिया में आता था, हम लोग अनलॉक करके यूज करते थे। नाउ व्हाई, उनको क्या प्रेम आया अपना? 4th day 5th day they are launching the same model in India. हमारा प्रेम आया क्या? We are huge consumption. 6,000 crores of iPhone 6 model was sold in India. 6,000 crores worth of one model. We are crazy country. Boss, believe me. खाने का बनाओ, हेल्थ केयर में बनाओ, खाली विश्वास होना चाहिए और सही तरह से करो. Correct. Believe me. So there's one more. Sorry to interrupt you, sir. There's one more question. I'll just take that. Mayur Baltoda wants to know, what should be the short-term strategy for small and medium retailers belonging to non-essential commodities? बस रिटेलर का पहला तो ये है कि this is one business where you have to wait for the customer. You have to wait for the customer. Now, this so retailer, what he can do short term is, first is, do you have the data of the customer? Have you sent them 10 messages? We are opening on this date. Take care. How is he going to be in their mind? वो कल आके दुकान खोल के दिन भर राह देखेगा तो नहीं चलने वाला। अब भी से सोच चालू होनी चाहिए कि मैं कस्टमर को वापस अपने दुकान में कैसे लाऊं। और दूसरी एक दिक्कत आने वाली है, इनको मैं अभी बोल रहा हूँ, ये मॉल खुलने दो और ये ऑनलाइन खुलने दो, ऐसी ऑफर डालेंगे कि हमारे रिटेलर भाइयों को सच में सोचने का टाइम आएगा। तो योर शॉर्ट टर्म एंड इमीडिएट स्ट्रेटेजी इज, हाउ डू आई गेट माय कस्टमर्स बैक, हाउ डू आई रीच देम कि हमारा चालू हो गया है, आप आओ। व्हाट काइंड ऑफ वेरी इनोवेटिव ऑफर्स, कोरोना सेल आने वाला है, कोरोना नाम नहीं देंगे, तो क्या इनोवेटिव हम लोग टिकल कर सकते हैं? आओ भाई, चलो हम 8 दिन के लिए ऐसा है, ये टाइम में खोलेंगे, आपको घर पर माल दे देंगे, हमको वर्चुअल क्या ट्रायल रूम दे देंगे, ये सब करना पड़ेगा। सो ये शॉर्ट टर्म नहीं, पहला सोच लाओ कि मेरा कस्टमर वापस कैसा आएगा। दूसरी सोच ये है कि मेरा कस्टमर अभी क्या खरीदेगा। एक बहुत होशियार रिटेलर था, मैंने गारमेंट होलसेलर का किया था सेशन। वो बंदा उस टाइम बोला था, सर मैंने तो सब अभी स्टॉक भरा है, सब इनरवेयर का, और लिटरली अभी दुकान में 2 महीना घर के बाद में लोग नाइट ड्रेस खरीदने जा रहे हैं, इनरवेयर खरीदने के लिए जा रहे हैं। मतलब हर किसी ने करना चाहिए ऐसा नहीं है, बट इट्स अ चैलेंज। वो आपको सोचना पड़ेगा मैं कस्टमर तक कैसे पहुंचूं, और अपने पास कोई डेटा नहीं है, बहुत कम लोगों के पास डेटा है। Right. I believe all the questions are pretty much done for today. Okay, fine. Don't see any more questions. So I would like to now invite Kishorji to give his vote of thanks. Kishorji, if we can please take the floor. Thank you, Chakorji, for the most wonderful session we have online. I mean, this is I think the second session we had online. Chakorji has been so practical, down to earth, and his speech is so motivational, drawn
deeply from his own experience as a businessman and from his own mistakes, and having an analytical mind and an educationist, he has been able to put through in such a lucid language which can be understood by any layman. Just day before yesterday, we had a session by him on for our electric association, where there were more than 100 members, and each of them has given me such a feedback that they have, they know these things, but this is the right time to learn. And as he said, this is a pause button. This is not a stop button. And the most important line which he said was, no crisis should be wasted. And I am sure we all have not wasted this crisis by inviting him today. And we have learned a lot which we can implement in our each one of us businesses or services. And we will definitely come out of this crisis in a big way and make India proud and our Prime Minister proud. Thank you all. Thank you, Rajesh Sankla, also for attending this session and giving your input in you being the master of the construction industry. We are surely looking forward to you for another session. And I also would like to request Chakorji to be a mentor of our JBN group, as he's got so much of experience. So he'll be able to guide us, all youngsters. And thank you, Chetan, for managing this meeting and providing this platform. Thank you all the group chiefs and Dinesh ji and our Jito chapter president and secretary for allowing us to have this session, wonderful session today. Thank you, Jito. This is the potential of Jito. We have so many such big, motivators and dynamic industrialists who will motivate us, and we look upon to you all for your guidance in future. So, Chakorji, I would request you to suggest some other panelists. May I say a few words? Sure. It's a great pleasure. ये अपना घर है और घर वालों के सामने आने में, मिलने में जो खुशी है वो सबसे ज्यादा है. मैंने कहा मैं रोज का वेबिनार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मैं घर में क्यों नहीं हूँ. तो मैंने किशोर जी से बात की और आज आपने ऑर्गेनाइज किया. दिनेश भाई तो वंडरफुल लीडरशिप. किशोर भाई इज अ वेरी साइलेंट, वेरी सिस्टमेटिक वर्क. और आप लोग जो JBN के लिए काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है और आप हमेशा सब भाइयों का सोचते हैं. तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक्स चेतन फॉर वंडरफुली ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑल्सो sharing your views wherever it was at. And Rajesh bhai तो हमारे चैंपियन है. he is a limit of positivity. पर एक उनका भी, क्योंकि हमारे काफी भाई रियल एस्टेट में है. मैं तो कहूँगा ऐसा एक भी नहीं हो जहाँ से वो रिलेटेड नहीं, कहीं ना कहीं तो रियल एस्टेट से वो जुड़ा है. तो उनका भी रखिए. आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू, आपको चाहिए तो मैं अभय जी से बात करता हूँ. फिनोमिनल स्टोरी है. आई नो उनका एक मिशन है कि वो 50 एंटरप्रेन्योर तैयार करना चाहते हैं और उनका एक स्टेटमेंट है. तो उस दिन उनका होने के बाद में मैंने उनको SMS किया, तो मेरी बात हुई फोन पे उनको. उन्होंने फोन लिया और ही टेक्सटेड मी, चकोर भाई माय डे इज डन इफ यू वर देयर. मैंने कुछ सवाल भी पूछे थे. तो उनका एक मिशन है 50 एंटरप्रेन्योर तैयार करने के, जहाँ पे वो शायद he will finance, he will give ideas, and we should not miss such an opportunity. इतना हीरा अपने पास है. राजेश भाई है, सांकला, अभय जी है, प्रदीप जी राठौड़ है. तो अभय जी का तो मैं इमीडिएट बात कर सकता हूँ. आप देखिए. So we'll properly see. और उनका एक एक वर्ड is worth its weight in gold, I would say. और मोटिवेटिंग है. और तो उनको भी ला सकते हैं. और कोई CS है, स्वाति जी है, उनका आप शायद कर सकते हैं. एक आपने आज शुरुआत की है या पहले किया है पता नहीं है, तो इसका हम फायदा ले सकते हैं. लोग लर्निंग मोड में भी है. तो और लॉकडाउन जिस दिन खुलेगा या खुलते जाएगा फिर कोई जूम पे मिलने वाला नहीं है. समय कम है. और किशोर भाई के साथ में हमने इलेक्ट्रिक एसोसिएशन का भी किया और मैसेज भी आया है केमिकल डीलर्स का. तो रोज 1 या 2 जूम पे मैं 100% हूँ. और आपने जो किशोर भाई बोला कि आई वुड लव टू बी मेंटोर, में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मैं आपके साथ में हूँ. किसी को भी लगा मैं किसी काम का हूँ या मेरी कुछ भी हेल्प हो सकती है, तो आई एम ऑलवेज कमिटेड टू दैट. और इतने अच्छे काम में मेरा कुछ भी सहयोग हो तो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड.
थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और किशोर भाई ये रिकॉर्डिंग किया है, मैं आपको लिंक भेजूंगा। यस दिनेश भाई। थैंक यू चकोर भाई। और आपने जो अभय जी के बारे में बताया तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू हियर हिम, एंड उनका तो एक सेशन अगर होगा तो बहुत ही वैल्यूएबल हो सकता है। नहीं, हम लोग कितने लोगों तक पहुंच सकते, क्योंकि इतना अपने को अच्छा हस्ती आ रही है। देखिए जीतो में हो गया उस दिन, लेकिन इट वाज नॉट फोकस्ड ऑन एंटरप्रेन्योर्स, इट वाज अ जनरल स्टोरी। और क्या होता है जीतो में बाकी सवाल बहुत रहते हैं उनके सोशल वर्क के बारे में वगैरह, तो अपन फोकस्ड एंटरप्रेन्योर के ऊपर JBN का ये अपॉर्चुनिटी प्रॉपरली यदि हम पहुंचे। और अभी JBN जीतो का जो प्रोटोकॉल निकला है, किशोर भाई बोल रहे थे, एक बार पूछिए तो मैं तुरंत बात कर लूंगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ये सेशन होने के बाद में बात करता हूँ। ठीक है यस। राइट। एंड ये जूम मीटिंग का मैं लिंक आपको शेयर करूंगा। नॉर्मली आई ऑल्सो अपलोड इट ऑन माय चकोर गांधी यूट्यूब चैनल, एंड मैं लिंक डालूंगा तो आपको सबको ये कभी भी रेफरेंस के लिए आ जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। Thanks. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Okay. Bye, everyone. It was nice meeting you, Chetan. Pleasure was all mine, sir. Thank you so much. Thank you. Okay. Goodbye, everyone.